obtained so many degrees in social sciences. For example, she did MA in sociology, she did MA in education, so she did B.Ed and submitted PhD in education. Already she has one PhD in botany. So worked in so many capacities in one of the premier institute of the country, that is Central Institute of Education and Technology, that is affiliated to NCERT Delhi. So RMM has been instrumental in training the teachers through one program, E-Pathshala, and she has developed a lot of open educational resources, and she has been engaged in training almost 1 lakh teachers in offline and online modes. So she has delivered the lecture for IIT Madras, for IIT Delhi. She has contributed a lot in content development and open educational resources and all those things. uh, in a short span of time, she has earned a reputation of being a good and compassionate teacher, as well as a good researcher and contributing a lot in outreach programs. RMM, in fact, is not only, doing for Jamia Millia Islamia, but she is engaged for various other agencies as well. So this topic, educational technology, ICTE, artificial intelligence, she has mastery over it, and she has recorded various lessons for various organizations. So the moment I kept these two topics in your workshop, I thought that RMM will be the most suitable person to do the needful. And besides one thing, I left, in fact, she has been awarded by various prestigious awards by various organizations as well. So her complete CV is available on the web page of the Department of Jamia Millia Islamia. If you want to know something more about her, definitely you can know. But at this juncture of time, since we are running short of time, so I think we should start with this short introduction. And one thing, RMM, in fact, my participants are very active. So they are very interactive. They really want to learn. So I'm quite sure you will like their company. So with this, I want to hand over the session to RMM. Ma'am, it's over to you. Thank you so much. Thank you so much, Professor Sajid. I normally call him Sajid Bhai. So it's always a pleasure to interact with the audiences of AMU. Um, but all the programs which are organized by AMU are very well organized and very well articulated. So that's why it's always a pleasure. And because in these type of programs I get to interact, I get the opportunity to interact with the counterparts, so it's always a learning experience for me too. This particular session which is given to me is on digitization, basically digital tools. I have got two sessions today. So what I have planned, that maybe in the first session I will be talking about the digital tools which are assisting, very much helpful in assisting the teachers in their daily life practices, in making them smarter teachers. And then in the second session, which I have got for today, I will be talking about the open educational resources, where we will try to create something. First thing which we will do is to identify the OERs. We have to see that what exactly are those OERs, what is the significance of using them, and then how to identify them from the sea of resources which is available over the internet, and then how, after identification, how to use them. And then the next thing is, which is the apex. If you see the uh, cone of creations, or if you see that the taxonomy, that creation is at the apex. So what exactly is the way in which we can create OERs? That is also something which I wish to discuss with you all. So let us start the session, the first session, which is on digital tools. By tools, acha, ek cheez aur, can I be bilingual, or I have to continue with English only? If there is a single participant who is not able to understand Hindi, then I can be in English only. I can speak in English only. Please let me know your preference. In my opinion, ma'am, bilingual is best. Okay. Okay, then I will be in bilingual, because always speaking in your mother tongue is the best way to speak and to communicate. So मैं bilingual रहूंगी. Okay. पहला जो मेरा सेशन है, that is on digital tools.
एक और चीज जो बिफोर स्टार्टिंग ऑफिशियली द सेशन आई मस्ट टेल यू दैट वॉट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक अप दैट इज कमिंग फ्रॉम द फॉस, लाइक वॉट एवर जो भी टूल्स मैं आपको बताऊंगी वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। इन टूल्स को यूज करने के लिए यू नेवर हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम एनीबडी एंड इवन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ये चीज याद रख लीजिएगा, ये डिस्क्लेमर है जो मैं दे रही हूँ। इवन इन द सेकेंड सेशन जब मैं OER की बात करूंगी वहां भी जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनका भी यही एक मेजर रूल होता है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये फ्री होते हैं और किसी को भी इसे यूज करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते और ना तो कभी किसी से परमिशन लेनी पड़ती है। So this is something which is the part of the ethics, the set of ethics which I follow. And this I have started and whatever I create, मैं बहुत सारा content खुद भी create करती हूँ जो कि मैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के तहत रिलीज करती हूँ, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट्स पे देती हूँ या खुद अगर मैं अपने मेरा खुद का भी एक चैनल है, ऑल्दो मैं उसे प्रमोट नहीं करती हूँ। इट्स लाइक जो भी कुछ बचता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को देने के बाद, अगर कोई ऐसी चीज क्रिएट हो गई जो उधर नहीं दी तो मैं उधर अपने वाले चैनल पे डाल देती हूँ। एंड वहाँ भी आई ऑलवेज सेलेक्ट अ लाइसेंस which informs the audiences that that material is also takeable। तो ये चीज एक बेसिक सी बात है। वो ही टूल्स जो फ्री होंगे उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को लेना यूज करना दिस इज समथिंग जो कोई भी कर सकता है, जिसके पास भी पैसे है वो कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन पैसे का जो एक बेंचमार्क है उससे अलग हटके होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने ये जो फिलॉसफी है इसको अपना रखा है। So let us start with the tools. For the first set of tools which I wish to discuss is the Google tools for education. We all know that Google जो है वो एक profit making enterprise है और किसी भी profit making enterprise को अपनी profit का कुछ part public के लिए देना होता है, वो अपने किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो गूगल चूंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने बहुत सारे टूल्स बना रखे हैं, तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो एजुकेशन के लिए फ्री हैं। और अगर आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करें वहां पे वो सारे के सारे जो फ्री टूल्स हैं वो आपको अपने जीमेल अकाउंट में से ही मिल जाते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और मैं अपने जीमेल अकाउंट पे लेके जाऊंगी आपको, और वहां पे डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ पे, वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये सारे टूल्स हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे लोग उन टूल्स को यूज कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है अगर आप यूज कर रहे हैं। मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसको भी देख लीजिए। अगर हो सकता है कि आपने उस टूल को यूज तो किया हो लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी हों जो नहीं आप शायद यूज ना कर पाए हो, तो उन पे डिस्कस कर लेंगे, उन नई चीजों को भी सीख लेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और मेरा जो स्क्रीन है इसके ऊपर मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया है। जीमेल अकाउंट में मैं पीपीटी यूज नहीं कर रही हूँ, ये डायरेक्ट मैंने गूगल अकाउंट पे मैं गई हूँ। जीमेल अकाउंट इसलिए क्योंकि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जीमेल, इस वजह से जीमेल अकाउंट मैंने ओपन करने बोला है। वो जब आप ओपन करते हैं तो ये 9 डॉट्स साइड में कॉर्नर में, ये 9 डॉट्स जो है ये नजर आते हैं। ये 9 डॉट्स वो जगह है, एक तरह से एड्रेस है उन टूल्स का जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिनको हम गूगल एप्स भी कहते हैं। गूगल एप्स फॉर एजुकेशन के नाम से इनको जेफ भी कहते हैं, गैफ भी कहते हैं बहुत से लोग, GAFE, जो गूगल एप्स फॉर एजुकेशन, ये इसका एड्रेस है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो यू विल गेट अ ड्रॉप डाउन एंड इसी ड्रॉप डाउन के अंदर वो सारे के सारे टूल्स मौजूद है। अब इसमें जो पहला वाला टूल है जिसके पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, एक टूल को यूज करके तो अभी बात ही हो रही है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, विच इज गूगल मीट। एंड उस गूगल मीट को हम अगर काफी दिन पहले से ही प्लान करके उसको हम कैलेंडर पे भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, इस पे नहीं बात करूंगी, मैं डॉक्स पे बात करूंगी। जो डॉक करके वहां पे एक आइकन है उस पे मैंने क्लिक किया है तो ये इस तरह से जो डॉक का होम पेज है वो आ जाता है। अब देखिए ये क्या पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करता है। डॉक बहुत कुछ मिलता जुलता है जो हमारी नॉर्मल वर्ड फाइल होती है उससे, लेकिन
कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें बहुत सारे हैं, एडिशनल हैं। दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल। एक तो बात यह है कि अगर आपने अपनी एक वर्ड फाइल क्रिएट की और अपनी मशीन में रखी है, मतलब आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में है, तो वो तब तक उस पर आप काम नहीं कर सकते जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते, या आप अपने लैपटॉप को अगर कैरी कर रहे हैं तो उसमें आप उसे खोल करके ही काम कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने वही फाइल गूगल डॉक में बनाई है, या आपने उस फाइल को जब बन गई, वर्ड फाइल बन गई, उसको आपने डॉक में कन्वर्ट कर लिया है। In that case, at any point of time, even if you don't have a machine with you, your own machine, in that case also you can utilize the services of the doc, क्योंकि उस फाइल पे आप पूरा काम कर सकेंगे। अपने फोन में या किसी और की मशीन में भी आप उस फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखिए, डॉक फाइल को, अगर एक नई डॉक फाइल आपको चाहिए तो उसमें ये होम पेज पे आने के बाद ये जो प्लस का सिंबल है, इस पे क्लिक करना होता है। प्लस के सिंबल पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नई डॉक फाइल खुल के आ जाती है। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ। यस, अब ये अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं। मैंने एक ऐसे ही रैंडम नाम दे दिया, AMU नाम दे दिया इसको। अब ये फाइल जो मेरे सामने है, देखिए इसमें एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की। इसमें अगर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ही समय पे आपके साथ में बैठे हुए अलग अलग अपने अपने घरों में, अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए 10 लोग और मिल के काम करें और एक ही फाइल पे, इसी फाइल पे काम हो, इसी फाइल पे के एक हिस्से पे कोई कैलकाटा में बैठा हुआ काम करे, कोई AMU में बैठा हुआ, कोई जामिया में बैठा हुआ, कोई मद्रास में बैठा हुआ काम करे, वो करा जा सकता है। इस पे इजीली किया जा सकता है, क्योंकि इस फाइल को क्रिएट करने के बाद अगर इस फाइल को यहाँ से शेयर कर दिया जाता है, शेयर करने के लिए क्लिक करके शेयर पे का ये बटन जो है, इस पे क्लिक करने के बाद वो इस तरह से एक बॉक्स आता है, और इस बॉक्स में आप जिस भी के साथ, किसी के साथ, इवन आउटसाइड इंडिया भी कोई है अगर, उसके साथ भी अगर आप इसको शेयर कर देते हैं, कैसे शेयर करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आप उसका डाल दीजिए, जो भी व्यक्ति है उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पे से डन कर दीजिए, तो वो जो जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, ये फाइल उसके साथ शेयर हो जाएगी। क्योंकि इसमें जब आप किसी का नाम, जैसे मैं एक करके देखती हूँ, ये मैंने नाम दिया, फिर ये यहाँ पे बोलता है कि आप मैसेज लिख दीजिए जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उनको लिख दूं जिनके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस पे काम कीजिए, हम लोग इस पे मिलकर के कोलैबोरेशन में काम करेंगे, वो मैसेज ये यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। और इसमें राइट्स होते हैं कि जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, आप कितने राइट्स उसको देते हैं, क्या आप उसको एडिटिंग, उसमें काम करने का राइट देना चाहते हैं। यहीं पे ये बाय डिफॉल्ट एडिटर का ही राइट होता है, लेकिन अगर इस पे क्लिक करते हैं आप, तो आपको यहाँ पे 3 तरह के राइट्स मिलेंगे जिन्हें कभी भी चेंज भी किया जा सकता है। तो जैसे आज की डेट में अगर आपने किसी को एडिटिंग का राइट दिया है, कल की डेट में आप, जब आप काम खत्म हो गया, आप चाहते हैं अब इस पे कोई और काम ना हो, तो उस केस में आप उसको व्यूअर का भी राइट दे सकते हैं। या मान लीजिए एज ए टीचर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और आप चाहते हैं कि वो आपके HOD को आप भेजते हैं कि वो उसको देख लें और उसके ऊपर आपको कुछ सजेशन दे दें, तो उस केस में एडिटिंग का राइट ना दे करके आप उनको कमेंटर का राइट दे दीजिए। कमेंटर का राइट जब आप देते हैं, तो वो जो भी कुछ करेंगे वो कमेंट की तरह से वहां पे शो होगा, प्रॉपरली वो दिखेगा कि उन्होंने क्या कमेंट आपको दिया है। बेसिकली इससे क्या होता है कि फीडबैक लेना आसान हो जाता है। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिसको आपने भेजा है वो उसमें कुछ भी ना करे, ना कमेंट दे, ना कोई चेंजेस करे, तो आप उनको व्यूअर बना दीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो भी मैसेज है वो लिख दीजिए, और एक साथ आप कई सारे लोगों को भी भेज सकते हैं। आप इसको सेंड कर दीजिए। जब आप इसको सेंड करते हैं तो ये जो मेल है, ये जो फाइल है, ये उस व्यक्ति के पास चली जाती है जिसका वहां पे ईमेल आईडी आपने लिखा है, उसको एक ईमेल दिखता है वहां पे। अब जब वो, जैसे मैंने अभी जसीम साहब के साथ उसको का ईमेल आईडी वहां लिखा, तो जसीम साहब अपना ईमेल जब खोलेंगे तो उनको एक वहां पे मेल दिखेगा कि ये वाली फाइल इरम खान ने उनके साथ शेयर की है और वो ये चाहती हैं कि इसमें वो कोलैबोरेशन में काम करें। तो वहीं से वो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और काम करना शुरू कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग एक साथ मिलके इन कोलैबोरेशन काम कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि
इस वाले फाइल को जैसे वर्ड फाइल यूज करते हैं सेम वैसे ही यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो कि वर्ड फाइल से भी बेहतर हैं, एडिशनल है। जैसे वर्ड फाइल पे काम करते करते आप भूल गए और सेव नहीं किया आपने, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ, कुछ हुआ, कोई दिक्कत हुई और आपका लैपटॉप बंद हो गया, या कई बार बैटरी ठीक नहीं काम कर रही तो लैपटॉप, लाइट चली गई और लैपटॉप बंद हो गया। इन दैट केस आपने जितना पीछे काम किया था वो सब का सब चला गया, जो सेव नहीं किया था वो सब चला गया। लेकिन अगर आप डॉक फाइल पे काम करते हैं तो डॉक फाइल पे अपने से चीजें सेव होती रहती हैं, इसमें सेव करने की जरूरत ही नहीं होती। कंट्रोल एस का ऑप्शन या सेविंग का ऑप्शन आपको जरूरत ही नहीं है यूज करने के लिए, क्योंकि इस पे सारी चीजें ऑटो सेव होती रहती हैं। एवरी सिंगल पॉइंट विच यू पुट इन इज सेव्ड। तो ऑटो सेविंग का ऑप्शन है तो वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, स्पीड नहीं होती टाइप करने में। तो इसमें एक और ऑप्शन है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत यूज करती हूँ। इसमें वॉइस टाइपिंग का भी एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे इसी फाइल में आप अगर टूल्स पे जाते हैं और उसमें जाकर के ये वॉइस टाइपिंग का बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एक माइक सा यहाँ पे आपको दे देता है, और इस पे माइक के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश यूएस। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस चोजन है, बट हम लोग अगर इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो उस केस में हमें इंग्लिश इंडिया यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश है वो तो इंडियन इंग्लिश है। तो इंग्लिश इंडिया मैंने यहाँ से चूज कर लिया। एंड नाउ इफ आई स्विच ऑन दिस माइक, so I have switched on the mic, I have clicked the mic, and then now whatever I want to speak, I will be speaking in English. It is going to write for me without using my hands. I can type, and this typing can go to a long extent. It is not going to stop until I click on the mic again. So in this way I can type in English in to lengths and pages. Even I can write books. This is going to work for me just like an assistant works for the supervisor. So I can write long articles and anything which I wish to write in English, it is going to type for me full stop. इस तरह से करके बिना हाथों का प्रयोग किए जो भी मैं बोल रही थी, रैंडम कुछ भी बोल रही थी, वो सब कुछ इसने टाइप कर दिया। अब देखिए इसने एक यहाँ पे असिस्टेंट का स्पेलिंग इसने मिस्टेक किया है, वो स्पेल चेक से ठीक हो जाता है। कभी कोई ऐसा स्पेलिंग है जो कि आपको इंग्लिश में करेक्शन करना है तो आप वहीं पे जाके चेक कर सकते हैं। ये है ना गोइंग टू स्टॉप, मैं अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहती हूँ मैं कीबोर्ड का यूज करके, या इसमें अगर मान लीजिए कुछ और लिखना चाहती हूँ मैं कीबोर्ड का यूज करके यहाँ पे टाइपिंग कर सकती हूँ फर्दर। तो आप बहुत सारा कुछ लिख रहे हैं, आपने इसको यूज किया, लिखते चले गए, बाद में इसको पढ़ लीजिए, पढ़ करके जो भी करेक्शन है इंग्लिश में वो तो आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। या कोई ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग इसने ठीक नहीं लिखा है, एक तो स्पेल चेक चल जाएगा और दूसरा आप उसको बार बार फिर से बोल करके स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। एक तो बात ये हो गई इन केस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में तो फिर भी टाइपिंग हो जाती थी आपके कीपैड से, लेकिन जब हमें टाइप करना होता है किसी अन्य भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, उड़िया में, किसी और अन्य भाषा में, उस टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक फॉन्ट्स चाहिए होती हैं, और जो उसकी टाइपिंग होती है, क्योंकि जो हमारा कीपैड है लैपटॉप का, उसमें वो कीपैड बना हुआ है इंग्लिश टाइपिंग के हिसाब से। तो हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में टाइपिंग करने के लिए उस स्पेसिफिक फॉन्ट को लेके आना पड़ता है और उसकी जो स्पेसिफिक टाइपिंग है वो सीखना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा काम आपको करना है, या आप बहुत ज्यादा भी काम, जैसे मैं तो बहुत सारा काम करती हूँ, हिंदी में तो बहुत काम करती हूँ मैं, उर्दू में भी थोड़ा बहुत करती हूँ, हिंदी में तो बहुत काम करती हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है, मैं ये जो टूल्स वाला ये वाला सेक्शन है इसको यूज करती हूँ, और इसे यूज करके मैं हिंदी में टाइपिंग कर लेती हूँ। और जो कंटेंट मेरा हिंदी में क्रिएट होता है वो कहीं भी किसी भी सिस्टम में जाने के बाद डिस्टॉर्ट नहीं होता। जबकि ऐसा होता है कि हमने अगर मान लीजिए एक फॉन्ट यूज की और वो स्पेसिफिक हिंदी टाइपिंग करी, तो जब वो मशीन किसी और की मशीन में गया और उस मशीन में वो फॉन्ट नहीं है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो बिल्कुल कुछ का कुछ दिखने लगता है। ये इसलिए होता है कि जो दूसरी भाषाएं हैं उनके लिए लैपटॉप्स या सिस्टम्स तैयार नहीं किए गए हैं, वो सिस्टम्स इंग्लिश के हिसाब से तैयार हुए हैं, तो उनकी उस स्पेसिफिक फॉन्ट को उधर डालना पड़ता है। नहीं तो पूरा
कंटेंट अजीब सा दिखने लगता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप यूनिकोड में टाइपिंग करें, यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज में टाइपिंग करें। और ये जो गूगल के जितने भी टूल्स हैं वो सबके सब यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। इस पे अगर आप हिंदी की टाइपिंग देखते हैं, करते हैं, तो वो कभी भी किसी भी सिस्टम पे जाने के बाद डिस्टॉर्ट नहीं होगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी की टाइपिंग भी कैसे बोल के की जा सकती है। यहीं पे इंग्लिश की जगह आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सब भाषाएं हैं। अभी ये तो यूरोपियन भाषा है, उसके नीचे आप आएंगे तो आपको भारतीय भाषाएं भी दिख जाएंगी। ये उर्दू भी आ गई, उर्दू और उसकी जो फैमिली की भाषाएं, ये आ गई आपकी हिंदी। और बहुत सी भाषाएं हैं जो भारतीय डिफरेंट भाषाएं हैं ना, देखिए ये यहाँ पे बांग्ला, और इवन इंग्लिश के केस में अमेरिकन, इंडियन, उर्दू के केस में उर्दू भारत, उर्दू पाकिस्तान सब है। और बांग्ला के केस में जो बांग्ला बांग्लादेश में बोली जाती है और जो बांग्ला इंडिया में बोली जाती है, जो दोनों में डिफरेंस होता है, तो उन्होंने वो तक बाइफर्केशन, जो एक्सेंट के हिसाब से बाइफर्केशन है, वो भी किया हुआ है। ऐसी और भी दूसरी भाषाएं हैं जो कि बहुत सी तो मुझे नहीं आती हैं, तो जिनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये हिंदी सेलेक्ट किया मैंने। हिंदी सेलेक्ट होने के बाद वो यहाँ ऊपर भाषा के जगह पे दिखाई देने लगती है। अब ये मुझे हिंदी दिखाई दे रही है। नाउ अब मुझे हिंदी में बात करनी है और वो हिंदी में मेरे लिए टाइप करेगा। हाथ का प्रयोग आई एम नॉट गोइंग टू डू, नॉट एट ऑल आई एम गोइंग टू यूज माई हैंड्स। व्हाट आई एम गोइंग टू जस्ट डू, ये माइक के ऊपर क्लिक कर दिया। माइक पे क्लिक करने के बाद अब मुझे हिंदी में बोलते जाना है। जो भाषा उधर सेलेक्ट की है उसी भाषा में आपको बोलना है। अगर मैंने हिंदी के बजाय उर्दू सेलेक्ट कर ली होती तो उस केस में मुझे उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो तो हिंदी के जैसी, मतलब जो बोलने का तरीका है, उर्दू के जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के जैसे ही हैं, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो अगर मैं उर्दू में बात कर रही होती तो ये उर्दू में लिखता, मतलब यहाँ पे मैंने उर्दू सेलेक्ट कर लिया होता तो ये सब कुछ उर्दू की स्क्रिप्ट में लिखता। ये अभी हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी में लिख रहा है। और जितनी देर मैं चाहूं मैं अपनी बात को कंटिन्यू रख सकती हूँ, लंबे लंबे पेजेस लिख सकती हूँ, 50 पेज एक साथ में टाइप कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस माइक। अगर मुझे बीच में रुकना है, पॉज लेना है, तो उस केस में मैं माइक पे क्लिक कर दूंगी तो ये रुक जाएगा। दोबारा माइक जब मुझे फिर से शुरू करना है तो मैं दोबारा माइक के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये दोबारा शुरू हो जाएगा, पूर्ण विराम। तो आपने देखा ये रैंडम जो भी मैं बोल रही थी, इसने मेरे साथ कैचअप किया और ये पूरा का पूरा इसने टाइप कर दिया बिना हाथों का प्रयोग किए। ये बहुत यूजफुल है फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको लिखने में दिक्कत होती है, कोई किसी तरह के की अगर टाइपिंग की दिक्कत है, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, इवन उनके लिए बहुत यूजफुल है। मुझे तो ये इतना हेल्प करता है क्योंकि जब मुझे हिंदी में कोई पेपर बनाना है या कोई कुछ भी करना है, क्वेश्चन पेपर तो अक्सर बनाने होते हैं, तो उस केस में बस ये ओपन करती हूँ, मैं बोलते चले जाती हूँ, फिर बाद में इसको आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए अगर एक चीज और है, जब जैसे मैंने इसमें हिंदी में सब कुछ लिख लिया, अब उसके बाद मुझे कैसे स्पेलिंग में कुछ दिक्कत लग रही है, जैसे इंग्लिश में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही थी तो स्पेल चेक ठीक कर देता है, लेकिन इधर हिंदी में तो स्पेल चेक नहीं लगता क्योंकि हिंदी तो है ही नहीं ना, कीबोर्ड आपका हिंदी तो है ही नहीं। तो वो अगर हिंदी में कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइपिंग जो जो आपका कीपैड है उससे तो नहीं होगा, उसके लिए आपको एक और टूल की जानकारी मुझे देनी होगी। अगर कोई चीज इसमें करेक्ट करनी है, कोई स्पेलिंग ठीक करनी है, एक तो तरीका ये है कि आप माइक को ओपन करें और उस शब्द को, जिस शब्द को आपको करेक्शन करना है, 2-3 बार आप अलग अलग तरीके से बोलिए तो भी वो आपको सही स्पेलिंग दे देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में हमें मात्राएं लगानी है, या जैसे म्यूजिक है या संस्कृत है, उसमें विसर्ग लगाना है, हलंत लगाना है, ये सब कुछ करना है, तो उस केस में there is another tool which you can use when you wish to do any type of correction in this Hindi script, and that tool is named as Google Input Tool. उसको डायरेक्ट आप यहाँ से डाल सकते हो, Google Input, ये आ गया Google Input Tool। ये यहाँ से क्लिक करेंगे ट्राई इट आउट पे। जब आप ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से आपके सामने स्क्रीन अपीयर होगा। अब देखिए डिफॉल्ट लैंग्वेज इसमें भी इंग्लिश ही है, यहाँ से आपको भाषा को चेंज करना है।
तो जो भी भाषा आप चाहते हैं उसका चयन कीजिए। ये यहाँ से हिंदी को चुन लिया मैंने, हिंदी में काम करना था। अब देखिए ये हिंदी में यहाँ पे लिख के आ गया, ये हिंदी लिख के आ गया। अब इसके बाद आपको जो भी हिंदी में टाइप करना है ना, आप उसको इंग्लिश में टाइप करेंगे, मतलब ट्रांसलिट्रेशन। जैसे अगर मुझे लिखना है कि मेरा नाम इरम खान है, तो मैं इसको देखिए कैसे लिखूंगी, MERA, मेरा नाम इरम। अब देखिए पहला वाला स्पेलिंग मुझे सही नहीं लग रहा है, जिसमें फर्स्ट स्पेलिंग ही सही है, बस एंटर मारते जाइए, वो टाइप होता जाएगा। बट इन केस इसमें पहला वाला आपको सही, दूसरा भी सही नहीं लग रहा है, ये भी सही नहीं है, ये वाला सही है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद खान, ये सही लग रहा है, खान है। और इसके बाद मुझे चाहिए मुझे एक पूर्ण विराम चाहिए, तो पूर्ण विराम के लिए इसमें होता है फुल स्टॉप। हाँ, अभी वर्क नहीं कर रहा है, फुल स्टॉप से पूर्ण विराम लगता है आमतौर से, नहीं तो उसका भी ऑप्शन मैं अभी आपको बता दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई चीजें जो है वो वियर्डली बिहेव करने लग जाती है। एनीवेज, ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, मतलब इंग्लिश की स्क्रिप्ट यूज की और हिंदी में टाइप हो गई सारी चीजें, देवनागरी में ये टाइप होती चली गई। ऐसे ही करके आप लंबी लंबी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर इधर से आप यहाँ से ये जो भी कंटेंट है इसे कॉपी कर लिया और अपनी फाइल पे ले जा करके इधर पेस्ट कर दिया। अब देखिए कोई इसमें भी शब्द जो सही लिख के नहीं आ रहा है, जैसे कि मुझे लिखना था छतरी। एक तो बात यह है कि अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे, अलग अलग स्पेलिंग्स टाइप ट्राई करेंगे, तो ये शायद आपको सही स्पेलिंग दे दे। अब देखिए मैंने जो क्षत्रिय का स्पेलिंग है, मुझे जो चाहिए था वो इसमें से कोई सा भी नहीं है, किसी भी हालत में ये सही नहीं दे रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जब स्पेलिंग सही ना आए तो उस केस में यहाँ पे जाना है, ये जो आ बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन करने पे नीचे की तरफ ये पेन का सिंबल बन के आता है, हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, पेन और हिंदी, इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो आपको फौरन एक छोटा सा स्क्रीन आपके सामने और अपीयर हो जाता है। इस स्क्रीन पे एक पेन आपको दे रखा है इन्होंने, आप अपने कर्सर को यूज करके अपनी उंगली की मदद से जो सही स्पेलिंग है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, जो सही स्पेलिंग है क्षत्रिय का वो मैं यहाँ अपनी उंगली की मदद से लिख रही हूँ, क्षत्रिय। ये बहुत कम केसेस में होता है, ज्यादातर तो ये सही ही करता है। ये इंटेंशनली मैंने आपको दिखाया, कोई ऐसा शब्द है इसमें हलंत लगाना है, विसर्ग लगाना है, मात्रा लगानी है स्पेसिफिक टाइप की, तो उस केस में ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपका कर्सर यहाँ पे है, क्षत्रिय यहाँ आपने सही लिखा, नीचे इसने ऑप्शंस दे दिए कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला, जो आपने लिखा था उसके ही इसने कई सारे ऑप्शन दे दिए। पहला ही वाला सही है, इस पे क्लिक करते ही ये आपके सामने सही वाला जो स्पेलिंग है वो अपीयर हो जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन टाइप long things, and not for typing long things you can use that voice typing वाला। और फिर जब उसमें कोई चीज करेक्शन करनी है तो इनपुट टूल पे आके कर लीजिए। पहले आज से 2-3 साल पहले जब वॉइस टाइपिंग वाला ऑप्शन नहीं था, तो उस टाइम पे हिंदी की टाइपिंग करने के लिए हम लोग इसको ही प्रयोग करते थे, इनपुट टूल को ही प्रयोग करते थे। जो मेरे इंट्रोडक्शन में जो साजिद सर ने बताया कि ई पाठशाला, नेशनल रिपोजिटरी, इन सबको हम लोगों ने क्रिएट किया था NCERT में, उसमें उर्दू और हिंदी दोनों वर्जन है। आपको मालूम होगा कि NCERT जो मैक्सिमम काम है वो 3 भाषाओं में करती है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो जब हिंदी और उर्दू वाला जो कंटेंट था, जब उसको क्रिएट करना था, पूरी रिपोजिटरी उसका जो होम पेज होता है उसे ही भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वो जो कन्वर्जन्स थे उसके लिए जो देना होता है ना, हमें लिख के देना पड़ेगा कि इसका इंग्लिश, ये इंग्लिश है, इसका हिंदी वर्जन क्या होगा। उसको क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं उस टीम को लीड कर रही थी उस टाइम पे, तो पूरा का पूरा इनपुट टूल की मदद से ही हम लोगों ने काम किया था, हिंदी का भी और उर्दू का भी। करेक्ट स्पेलिंग्स इंग्लिश के सामने हम लोग लिख के देते थे, और वो फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको दे दिया जाता था।
वो लोग बैकएंड पे काम करते थे, वो लोग उस ट्रांसलेशन को उधर इंसर्ट कर देते थे। तो पूरा पूरा काम हम लोग इनपुट टूल की मदद से करते थे। इट्स अ वेरी एफिशिएंट टूल, वेरी इफेक्टिव टूल इफ यू वांट टू राइट इन एनी लैंग्वेज। इधर आपको ट्रांसलिट्रेशन करना होता है, इंग्लिश में टाइप करेंगे, वो जिस भी भाषा को सेलेक्ट किया वो उसमें आपको टाइप करके कंटेंट देगा। फिर इधर से इसे कॉपी कर लीजिए, वर्ड फाइल पे पेस्ट करना है वर्ड पे पेस्ट कर लीजिए, या अगर आप डॉक फाइल पे काम कर रहे हैं तो डॉक पे उसको पेस्ट कर लीजिए। सो इन दिस वे द वर्क इन डिफरेंट लैंग्वेजेस बिकम्स वेरी इजियर। अब मैं वापस ये इधर वाली फाइल पे आ गई। तो इस तरह से करके कोई करेक्शन है तो हम कर लेते हैं। अब देखिए एक इसमें जो और बहुत ही जरूरी फीचर है, हम लोग ट्रांसलेशंस भी बहुत सारा करते हैं। बहुत सारे टीचर्स यहाँ बैठे होंगे जो ट्रांसलेशंस करते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए नॉर्मली गूगल टूल यूज करते हैं, गूगल ट्रांसलेट। अब उसमें क्या करना पड़ता है कि छोटे छोटे चंक्स, बिट्स एंड पीसेस, एक एक पैराग्राफ को लेकर के वहां पे ट्रांसलेट में जाते हैं। मैं दिखाती हूँ करके, ये इधर जाते हैं। बहुत सिंपल से प्रोसेस है। गूगल ट्रांसलेट खोला और वहां पे जो भी पैराग्राफ जिसकी आपको ट्रांसलेशन करना है, यहाँ से मान लीजिए मुझे इस इतने का ट्रांसलेशन करना है, तो मैंने ये इतने को यहाँ से कॉपी किया और ट्रांसलेट पे गए, जा करके इधर पहले तो यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज कर लेते हैं ना, डिटेक्ट लैंग्वेज से वो चुन लेता है और इंग्लिश में ही चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगी और इंग्लिश की बजाय इसको मैं हिंदी कर देती हूँ। चलिए ये हिंदी, ये इसने क्या किया, मुझे ट्रांसलेशन करके दे दिया। ये जो तरीका है, कन्वेंशनल तरीका, इसको हम लोग यूज कर रहे थे जमाने से, और फिर यहाँ से इसे कॉपी करके अपनी फाइल पे पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी चीज, बहुत ही अच्छी चीज, जब आपने, जिन लोगों ने भी गूगल ट्रांसलेट यूज किया है उन्होंने देखा होगा कि एक लिमिट होती है, वर्ड लिमिट होती है। अगर आप एक पूरा डॉक्यूमेंट जो 10 पेज का है वो एक साथ कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं, तो वो शो करता है कि यू हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ द वर्ड काउंट। इधर एक ऐसा फीचर है जिससे चाहे कितनी भी बड़ी फाइल हो, इन वन गो यू कैन ट्रांसलेट द एंटायर डॉक्यूमेंट। पूरी किताब का वर्ड फाइल है, 300 पेज का वर्ड फाइल है, उसको आप एक क्लिक में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये मेरी फाइल है, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है। इसके लिए मैं अगेन टूल्स पे जाऊंगी और यहाँ वॉइस टाइपिंग के ही जस्ट ऊपर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का सेक्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगी। अब ये बोलता है कि आपको ये ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ AMU के नाम से फाइल करके देगा। आप चाहे तो यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हो गया ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ AMU। अब ये कहता है कि किस भाषा में ट्रांसलेशन चाहिए आपको। आपको यहाँ से भाषा चुननी है, जिस भी भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो लेट अस चूज हिंदी। हिंदी मैंने चुन ली, जो इंग्लिश का पार्ट है वो तो कर ही देगा हिंदी, बाकी तो हिंदी है। तो अब मैं इसको यहाँ से ट्रांसलेट पे क्लिक कर देती हूँ। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। यस, और इसने अब जो फाइल बनी आपके सामने जो आई है, इसका नाम है ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ AMU। और इस फाइल के अंदर जो भी कुछ इंग्लिश में था, अब वो सब हिंदी में टाइप हो गया। जो हिंदी में था वो हिंदी में ही है, और जो भी कुछ हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में था, वो सब का सब हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर मैं चाहूँ इस पूरी फाइल को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन इधर से जाएंगे टूल्स में जाके और इधर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, वापस वो पूछेगा और फिर आपको यहाँ से भाषा चुन लेनी है। मैं यहाँ से इंग्लिश चुन लेती हूँ। और इसने पूरा कंटेंट जो था, जो हिंदी में था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। इसमें क्या हुआ, आपका वो वाला जो स्टेप था ना कि उठा उठा करके डालना है और फिर उसको पेस्ट करना है और फिर उसके बाद उसका कंटेंट को ट्रांसलेट करना है, वो भी बच गया एक बार। और ये जो वर्ड फाइल, वर्ड काउंट का चक्कर होता था कि यू हैव क्रॉस द लिमिट, इतना ट्रांसलेट नहीं एक साथ करेगा, वो भी खत्म। एक बार में पूरी फाइल ट्रांसलेट होके मिल गई आपको। इट मेक्स योर लाइफ इजी एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। जब कभी भी
कुछ भी ऐसा है जो आपको अक्सर ऐसा होता है, जैसे हमारे यहाँ 3 मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो अगर मैंने अब मान लीजिए अपना नोट्स तैयार किया है इंग्लिश में, जो कि आमतौर से टीचर्स इंग्लिश में ही काम करते हैं, बट उनको जो हिंदी मीडियम के बच्चों या उर्दू मीडियम के बच्चों को भी कंटेंट देना है, इन दैट केस व्हाट दे कैन डू, दे कैन जस्ट यूज दिस टूल, ट्रांसलेट द एंटायर कंटेंट इनटू हिंदी और उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज। हाँ, एक बात जरूर कर लें, जब ट्रांसलेशन होके मिल गया उसके बाद उसको पढ़ जरूर लें एक बार। वैसे अब गूगल ट्रांसलेट बहुत एफिशिएंटली काम करने लगा है, अर्थ का अनर्थ नहीं करता, बट फिर भी है तो मशीन ही, और मशीन लैंग्वेज, ये जो मशीन का इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है। दैट्स व्हाई you always have to make a cross check that whether machine has done the, क्योंकि मशीन को ना बहुत ज्यादा जो परिप्रेक्ष्य होता है, कंटेक्स्ट होता है, वो नहीं पता। So that's why it's always good to just have a reading of the material which is machine translated by you, and then once you are done with a reading, corrections वगैरह हो गया, तब भेजें उसको। तो बट एक चीज आप याद रखिए कि अभी जो ट्रांसलेशंस हैं वो 90% से अबव सही होने लग गए। उसके पीछे एक कारण है कि जो गूगल है उसकी सभी सर्विसेज फजी लॉजिक पे चलती हैं और ये अपडेट होती रहती हैं एवरी सिंगल डे। तो जो भी चीजें आप बार बार उसमें करेक्ट करते हैं, मशीन उसको अपने पास अपने सिस्टम में स्टोर कर लेती है कि ये सही स्पेलिंग है। कोई स्पेलिंग को आपने पहली बार अगर इस पे लिखा, मशीन ने अपनी मेमोरी में उसको रख लिया, अब दूसरी बार जब कोई उसको लिखने की कोशिश करेगा तो वो उसको उसका ऑप्शन दे देती है। एंड दैट्स व्हाई द जितने भी ये मशीन ड्रिवन सर्विसेज हैं डे बाय डे बेहतर होते जा रहे हैं। एंड देयर इज अ सिचुएशन व्हिच इज गोइंग टू कम वेरी सून, अ लिटिल बिट ऑफ आई थिंक हैज ऑलरेडी कम, कि जो टीचर के जैसी एफिशिएंसी मशीन भी दिखाने लगी है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, केरला में एक फर्स्ट जो रोबोट टीचर है उसको अपॉइंट किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। टीचर को कभी कोई रिप्लेस नहीं करेगा। वो जो रोबोट टीचर है दैट इज आल्सो फॉर द असिस्टेंस ऑफ अदर टीचर्स। शी इज नॉट गोइंग टू होलसोल टीच द स्टूडेंट्स, दैट इज समथिंग which is somehow a search engine which has given up, like rather than making it in the form of a laptop, उसको एक रोबोट के फॉर्म में कर दिया गया है। वो डेटा की एनालिसिस बड़ी जल्दी कर लेते हैं, एल्गोरिदम बहुत जल्दी बना लेते हैं, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। अब आप टीचर से कोई सवाल पूछते हैं तो टीचर जो है वो उसको इधर से उधर से सर्च करते हैं या अपनी मेमोरी पे जोर डाल के आपको आंसर देते हैं। उनको टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट टाइम लग सकता है, बट ये जो मशीन है इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोसेसिंग है वो बहुत जल्दी होती है। so that's why they are very efficient, but they still require the assistance of the teacher। वो बिना टीचर के हेल्प के कुछ नहीं कर सकते। वो टीचर को हेल्प तो कर सकते हैं लेकिन बिना टीचर के इंस्ट्रक्शन दिए, बिना प्रॉम्प्ट दिए, इसको जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की भाषा में प्रॉम्प्ट कहते हैं, जो हम सवाल पूछते हैं, बिना उन प्रॉपर सवालों के वो जवाब देने में सक्षम नहीं है। इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे मेरे साथ कुछ बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। वो लोग जब शुरुआत करते हैं तो मैं सबसे पहला काम उनसे यही बोलती हूँ कि जाओ जा करके प्रॉम्प्ट के बारे में पढ़ो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होती है उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक तो वो डेटा के ऊपर चलता है, वो एल्गोरिदम्स बनाता है, और जो एल्गोरिदम बनती है या डेटा की एनालिसिस होती है वो उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड होती है जिसको हम देते हैं, जिसे हम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक पूरा एरिया है जो डेवलप हो रहा है। तो अगर हमने उसको सही प्रॉम्प्ट नहीं दिया तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई आवर इंटेलिजेंस इज सुपर ओवर एंड अबव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। सो ये जो सारे सिस्टम्स हैं एफिशिएंट होते चले जा रहे हैं क्योंकि ये अपनी मेमोरी को एनरिच करते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट द सर्विस कॉल्ड गूगल डॉक। अब इसको शेयर कर देना आसान है, इसमें सेविंग की जरूरत नहीं है, एक साथ 10 लोग मिलके काम कर लें। और अगर टीचर चाहती हैं कि वो ये देखें कि कितने लोगों ने काम किया है, कब कब काम किया है, तो ये यहाँ पे जाके ये हिस्ट्री है, ये जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो जितने लोग, अभी चूंकि मैंने ही काम किया है तो इसलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्च 9 2:23 लास्ट जो है वो इरम खान ने काम किया है। अगर इस पे
मान लीजिए एक साथ 4 लोग काम कर रहे होते, किसी ने इस पे 8 में मार्च को काम किया है, किसी ने 9 मार्च को 10 बजे काम किया है, किसी ने इस पे 9 मार्च को 11 बजे काम किया है। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन टाइम पे के हिसाब से टाइम स्टैम्प करके ये दे देता, और अलग अलग कलर में देता। मान लीजिए इरम खान का ब्लू से दिख रहा है, तो एनीबॉडी एल्स का वो किसी और पिंक से दिखता, ऑरेंज से दिखता, ब्राउन से दिखता, पता आइडेंटिफाई हो जाता कि किसने कितना काम किया है। तो जब हमें कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स देने होते हैं बच्चों को, तो आपने उसको शेयर कर दिया। अब अगर इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत एक्टिव है, जिसने बहुत सारा काम करा है उसमें, और कोई ऐसा बच्चा है जो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है और वो सिर्फ नाम करने के लिए उसमें हो गया, और आपको उनके काम करने के ऊपर मार्क्स देने हैं, कितना किसने किया उस पर मार्क्स देने हैं। तो यू जस्ट एज अ टीचर यू जस्ट मूव टू दिस हिस्ट्री वाला पेज एंड यू कैन सी दैट who has done what. So if you want to give collaborative projects to multiple students and on the basis of their performance you want to evaluate them, that is also very much possible. मैं करती हूँ इस तरह से क्लास में मैं प्रोजेक्ट्स देती हूँ और इवेलुएट करती हूँ। अब देखिए एक और चीज, जैसे आपने एज अ टीचर उनको एक काम दे रखा है, 10 बच्चों को काम दे रखा है और आप उसको चेक कर रहे हैं, बच्चों ने आपके साथ शेयर कर दिया और अब आपसे उनको फीडबैक चाहिए। फीडबैक देने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे ये जो सेक्शन है ना, एडिटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, एडिटिंग के बजाय अगर आप इसको यहाँ पे सजेस्टिंग क्लिक कर देते हैं, मैं एज अ टीचर बच्चों को कोई फीडबैक देना चाहती हूँ, इस केस में मैंने यहाँ पे एडिटिंग के बजाय सजेस्टिंग का ऑप्शन ओपन कर दिया, और अब मैं इस पेज पे आई और मैं मान लीजिए यहाँ पे इनको कुछ लिख के देना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ कि इधर एक पेज ऐड करो, ऐड अ पेज, ऐड अ पैराग्राफ, पैरा ऑन इंग्लिश, इंग्लिश टाइपिंग। अब ये जो है यहाँ क्लियरली मेरे मैसेज के फॉर्म में दिख रहा है कि ये बच्चों को दिख जाएगा दैट इरम खान ने 2:30 बजे आज की डेट में, आज मतलब 9 मार्च को, ये वाला पोर्शन को रिमूव किया है, रिप्लेस किया है विद दिस पार्ट, ऐड अ पैरा ऑन इंग्लिश टाइपिंग। या तो मैं उसमें पैरा ऐड कर देती और नहीं तो मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब जो बच्चे हैं जब वो देखेंगे कि ओके मैम ने तो ये वाला इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देंगे और वो चाहे तो यहाँ पे रिप्लाई भी कर सकते हैं। या बच्चे इस बात से अग्री करते हैं तो इस पे टिक मार्क कर देंगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, या उससे अग्री नहीं कर रहे तो उसको वो क्रॉस करके रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसे करके जो फीडबैक है टीचर का वो स्टूडेंट्स को मिल जाता है, और जो भी एक तरह से इवैल्यूएशन भी टीचर ने उधर ही कर दिया। एक प्रोजेक्ट जो डिस्पोजेबल प्रोजेक्ट बनता अगर वो कागज पे सबमिट करते, कोलैबोरेट भी नहीं कर पाते वो प्रॉपरली, कोलैबोरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब एक साथ 10 बच्चे कोलैबोरेट करके एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसको इवन यू कैन गो फॉर पब्लिकेशन, और मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं किए हुए हैं। हम लोग पिछले पिछले से पिछले साल आई थिंक 2 years बैक एक सेमिनार डिस्कशन की क्लास होती है जो मुझे दी गई थी, उसमें बीएड के बच्चे थे, सेकेंड ईयर, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे थे। बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे काफी मेच्योर से हो जाते हैं, इत्तेफाक से वो ग्रुप काफी मेच्योर था। तो मैंने उनसे कहा कि अब आपको सेमिनार डिस्कशन, 10 बच्चे थे मेरे पास, जो ये 10 बच्चे हैं ये मुझे जो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे वो कोलैबोरेशन में करना है आपको। और मैंने उनको टॉपिक दिया था साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि थोड़ा सा आईसीटी जानती हूँ तो इसलिए मैंने, और मुझे लग रहा था कि मुझे इनको साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में अगर इनसे इनका नो हाउ जानना है, इनको क्लैरिफाई कर, मतलब ये एकदम क्लियर हो जाए, अपने इनके थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाए, इसके लिए इन्हें कुछ काम करने दे दो। तो इनसे मैंने कहा कि आप लोग साइबर सेफ्टी, 2-3 चीजें मैंने उनके साथ शेयर कर दी थी, कुछ जो पॉलिसीज हैं और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके साथ मैंने शेयर की थी क्लासरूम पे। मैं अभी आपको दिखाऊंगी व्हाट इज क्लासरूम, आई होप लोग जानते होंगे फिर भी। तो प्रोजेक्ट देने के टाइम पे उनके एक फाइल बना दी और बोला कि ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे से रिलेटेड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप शेयर करेंगे उधर। एक ही फाइल पे उन 10 बच्चों ने अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, कुछ ने इंग्लिश में लिखा, कुछ ने हिंदी में लिखा, ऐसे करके उन्होंने सब कुछ लिखा और करीब 12 पेज उन्होंने लिख डाले थे। उसके बाद फिर मैंने उन सबको उधर ही सजेशंस दिए और बाद में फिर वो पेपर के फॉर्म में जिसमें
उसको पेपर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया। जो नैरेटिव्स थे बच्चों के, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स तक डाले थे, मोबाइल पे किसी के साथ फोर्ज हुआ या कोई बैंक किसी की फोर्जरी थी जो उन्होंने झेली हुई थी या उनके किसी नोन ने झेली थी, उस तरह की चीजों के उन्होंने फोटोज वो पूरी एनेक्डोट्स टाइप से डाल दी। उन नैरेटिव्स को यूज करके देयर वाज अ पेपर व्हिच वी क्रिएटेड, इट वाज कम्युनिकेटेड। जेएनयू में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने उसको कम्युनिकेट भी किया था और बाद में उसको छपवाया भी। तो ऐसे करके एक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो नेचर है वो चेंज किया जा सकता है। वरना नॉर्मली बच्चे सिर्फ, उनको एक टॉपिक दे दिया जाता है, वो कुछ 2-4 पन्नों में लिखते हैं, वो सबमिट करते हैं, आपने उनको एक बार नंबर दिया, कुछ देखा कुछ नहीं देखा। मैं अपनी बात बता रही हूँ, इतना टाइम तो होता नहीं है कि एक क्लाइंट को पढ़ा जाए। तो हम लोग देखते हैं बस फॉर 1 मिनट और समथिंग लाइक दैट, और हम उस पर नंबर दे देते हैं। और मुझे नहीं लगता कभी किसी टीचर ने दोबारा उठा के उन पन्नों को पढ़ा होगा। एटलीस्ट मैं तो नहीं पढ़ पाती, क्योंकि फिर अगला बैच आ गया, दूसरे काम आ गए, तो वो टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं उस तरह के असाइनमेंट्स को डिस्पोजेबल असाइनमेंट्स बोलती हूँ, वन टाइम यूज। जबकि किसी बच्चे ने शायद उसमें इतना अच्छा लिखा होगा जो कि आपको लग सकता है कि पब्लिशेबल है, इतना अच्छा उसने लिखा, वो एकदम नॉवेल थॉट है, एकदम उसकी ओरिजिनल बात है, बट फिर भी मुझे तो ये लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको रख लूंगी, नोट कर लूंगी। और फिर वो बंडल बनाया और उसको एक तरफ रख दिया, एंड देन जब कभी आप सोचते हो कि अरे वो था, बड़ा अच्छा था, और ढूंढने की कोशिश करते हो, तो वो इन द सी ऑफ द असाइनमेंट्स जो रखे होते हैं उसमें से मिलता ही नहीं है। एंड देन यू चक ऑफ द आइडिया कि चलो छोड़ो, बाद में कभी देखा जाएगा, और वो कभी बाद आता नहीं है। तो उसका एक उपाय ये है कि ask them to create their assignments, their projects which are reflective in nature on this type of document, so they can see each other also working। अपनी उनकी एक दूसरे की थॉट्स भी उनको पता चलेंगी, और फिर वो जो नॉवल थॉट्स हैं उनको आप एक जगह पे डॉक्यूमेंट कर पाएंगे। एंड maybe at some point of time you find those narratives to be used in some of your researches। So दिस इज द फर्स्ट टूल, आई यूज इट ट्रिमेंडसली, बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैं इसके जो तरीके हैं तरह तरह से यूज करने के, वो मुझे आपको भी बताना चाहिए, इसलिए मैं इसे हमेशा बताती हूँ जब भी डिस्कशन करती हूँ इस पे। सो दिस वाज द फर्स्ट टूल। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टूल। बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टूल, you can ask. Is there any question related to this particular tool? I hope I am able to communicate. मैं अपनी बात कह पा रही हूँ आप सबसे, कोई कुछ Yes, बोल ma'am. नहीं रहा, ठीक इसलिए है मैम, हो जा रहा है। वेरी नाइस Okay. प्रेजेंटेशन। No, Okay, no fine. question. No questions. Good. So फिर भी कोई सवाल है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। मैं अगले टूल पे चले जाती हूँ। Let us come to the next tool, which is again a Google tool, and this one is called as Google Sheets. This tool is again very useful. इसको आप एक्सेल शीट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल शीट से फार मोर फीचर्स इसके अंदर हैं। मैं बहुत सारा इसका इस्तेमाल करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि अटेंडेंस की कोऑर्डिनेटर भी हूँ अपने डिपार्टमेंट में, और मेरा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। जस्ट इन अ सिंगल डिपार्टमेंट देयर आर 50 फैकल्टी मेंबर्स, और हर टीचर बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ाता है। हर टीचर के पास तकरीब एक डिपार्टमेंट में ही 900 बच्चे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सिर्फ मेरा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जहाँ पे डीएलएड कोर्स है, बीएड कोर्स है, बीएड नर्सरी है, बीएड स्पेशल है, एमए एजुकेशन है, एमएड स्पेशल है, पीएचडी इन एजुकेशन है। सो बहुत सारे कोर्सेज हैं, सब में कोई टीचर्स ऐसे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं डीएलएड से लेके पीएचडी कोर्स वक्त तक को पढ़ाती हूँ। तो अब मेरे पास डीएलएड के बच्चे हैं, बीएड के हैं, बीएड नर्सरी के हैं, एमए के हैं, पीएचडी कोर्स वर्क के बच्चे हैं। इतने बच्चों को अलग अलग सेक्शंस को मैं पढ़ाती हूँ, और ऐसे ही मेरे डिपार्टमेंट के हर टीचर का हाल है। इस केस में अब जब सबसे अटेंडेंस लेनी है, और हमारे यहाँ का रूल ये है, यूनिवर्सिटी का रूल है दैट वी हैव टू डिस्प्ले द अटेंडेंस एवरी 3 मंथ, और अगर 75% अटेंडेंस नहीं है at the end, once the students are about to give the exams, at that point of time they will be उनको 10% का रिलैक्सेशन मिलता है अगर वो मेडिकल सबमिट कर देते हैं, और नहीं तो फिर वो एग्जाम नहीं दे पाते। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, दिस द अटेंडेंस।
उसको मैनुअल तरीके से कर पाना मुझे पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर वो बैठ के एंट्री करनी है, और एज ए फैकल्टी मेंबर आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट की, और ना इतना टाइम है मेरे पास कि मैं बैठ के इतने सारे टीचर्स की एंट्री करूंगी। देन इवन अगर मैं अपने स्कॉलर्स से कराऊं तो उनका टाइम भी प्रेशियस है, वो अपने दूसरे काम कर रहे होंगे कि मेरी एंट्री करेंगे, एंड वी डोंट हैव अ स्टाफ who is designated for, like there are clerical staff, there are other staff, but वो इस काम के लिए designated नहीं है। तो फिर मुझे ये ऑप्शन सही लगा कि मैंने क्या किया, जब से मैं इसकी कोऑर्डिनेटर बनी, करीब तीसरा साल है ये, कि मैंने इसके लिए गूगल शीट क्रिएट किया। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग, इंटरनेट का स्पीड का कुछ इशू हो गया शायद, जस्ट अ मिनट, ये अभी ओपन हो जाएगी। इंटरनेट का स्पीड का कुछ इशू है। तो ये जो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इसके बारे में मैं बता देती हूँ। इसमें क्या किया है कि हर एक कोर्स का एक शीट है। गूगल शीट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग पेजेस बना सकते हैं, जैसे एक्सेल में भी ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे इसमें हर अलग अलग पेज बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, हर एक कोर्स का एक पेज बना दिया। तो जैसे बीएड फर्स्ट ईयर है उसका एक पेज है, बीएड सेकेंड ईयर का एक पेज है, एमए सेमेस्टर 1 का एक पेज है, एमए सेमेस्टर 3 का एक पेज है, क्योंकि एक बार में या तो ऑड सेमेस्टर चल रहा होता है या इवन सेमेस्टर चल रहा होता है। ऐसे करके हर एक कोर्स का एक एक पेज बना हुआ है। उस पेज पे जब आप जाते हैं, ये खुल गया, इसमें मैं खोल के दिखाती हूँ आपको अटेंडेंस वाला। सो दिस इज द अटेंडेंस शीट, एंड इधर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे ये पेजेस हैं, जैसे ये डीएलएड सेकेंड ईयर, बीएड स्पेशल, ये फिर पीएचडी कोर्स वर्क, एमएड स्पेशल, बी डीएलएड फर्स्ट ईयर, ऐसे करके इसके पेजेस बना दिए हैं। और इन पेजेस पे क्या कर दिया है कि ये जो सारे के सारे कोर्सेज है ना, हर कोर्स के अंदर पेपर्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे पेपर्स का नाम लिख दिया, और पहला वाला जो कॉलम है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो टीचर ने ली हैं ये लिखना है, और इधर लिखना है बच्चे ने कितनी क्लास अटेंड की। तो जैसे ये फर्स्ट जो स्टूडेंट है अब्दुल रहमान, इसने जो एलएसी है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, इसमें टीचर ने क्लास ली थी 30 और बच्चे ने अटेंड की 30 में से 30। इस बच्चे ने जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पेपर है उसमें भी 21 में से 21 क्लास की, ऐसे करके ये पूरा स्प्रेड, एंटायर स्प्रेड मिल जाता है। उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दिया जाता है। वो फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपली जो इधर से यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं। किसी को फॉर्मूला लगाने में वैसे तो बहुत इजी होता है, बट अगर लगाने में दिक्कत है तो उसको मैन्युअली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, इधर यहाँ पे ये यहाँ पे टोटल और उसकी जो परसेंटेज है वो निकाल देते हैं, एंड इट इज नाउ लाइक वी कैन सी दैट किसकी 74, ये जैसे इस बच्चे की 74% है, 75% से कम है, तो उसको मार्क कर दिया, और फिर उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं। जैसे अभी मैंने जो जनवरी के मंथ 31 जनवरी तक की अटेंडेंस डिस्प्ले की थी, तो वो इस तरह से करके डिस्प्ले कर दी, जिससे कि टीचर को भी पता चल जाए कि किस बच्चे का की सिचुएशन गड़बड़ है। अगर वो चाहते हैं तो टीचर्स जो है वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बच्चे की अटेंडेंस पूरी करवा सकते हैं। दिस इज अप टू द टीचर, एंड इवन द स्टूडेंट कैन नो दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ माय अटेंडेंस, एंड अगर मैं अभी से रेगुलर नहीं हो गया तो फिर मेरा एग्जाम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हर 3 महीने पे हम लोग अटेंड, एक बार सितंबर में शो किया, फिर अभी जनवरी में, एंड देन वी आर गोइंग टू शो इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ऐसे करके हम लोग हर 3 महीने पे अटेंडेंस को शो कर देते हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये जो फाइल है, ये जो शीट है, इस शीट को यहाँ पे सारे टीचर्स के साथ शेयर कर दिया गया है। ये सभी टीचर्स, डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स हैं उन सबके साथ ये फाइल शेयर्ड है। आप देख सकते हो कितने सारे टीचर्स हैं, और ये सभी टीचर्स अपने अपने स्कॉलर को, अपने 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 स्टूडेंट की अटेंडेंस इधर अपडेट कर देते हैं, और फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो
तो you just imagine the way in which like earlier we were working कि एक पूरा स्टाफ था जिसको बिठा रखा था, वो सबसे कलेक्ट करता था और बैठ के दिन भर एंट्री करता रहता था, उसका यही काम था कि वो दिन भर बैठ के एंट्री करता रहता था. That fellow retired, that fellow is not working, and that's why उसके बाद कोई स्टाफ ही नहीं है जो कि इस काम को कर सके. और टीचर तो करेगा नहीं बैठ के ये दिन भर, क्योंकि हमें तो अपनी क्लासेस भी लेनी है, एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस लेनी होती हैं, पीएचडी स्कॉलर्स को भी गाइड करना होता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली फॉर समबडी टू डू द मैनुअल एंट्री ऑफ दीज मेनी कोर्सेज, दीज मेनी स्टूडेंट्स. तो ये ऐसे ही पॉसिबल हो पाता है कि 50 के 50 लोग जो है वो इस फाइल पे अपना अपना काम अपडेट कर दें, और फिर उसको बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. शीट को अगर मुझे चेक करना है किस टीचर ने कब क्या किया है, या एक आध बार ऐसा भी होता है कि गलती से किसी ने गलती कर दी, बाय मिस्टेक somebody had made a mistake, in that case even we can revert. अगर मैंने देखा कि किसी टीचर ने उसमें कोई मिस्टेक कर दी है जो कि बाद में हो गई है, उस केस में जो फाइल है उसको रिवर्ट भी किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और रिवर्ट करने के बाद जो पुरानी वाली फाइल थी जो सही थी वो उस पे जाया जा सकता है. इजीली यू कैन गो एंड यहाँ से रिस्टोर दिस वर्जन. जैसे मैं पुराना वाला वर्जन के जो अभी था उसके बजाय मैं ये 6 मार्च वाला जो वर्जन है इस पे आना चाहती हूँ, बहुत इजीली मैं इस पे ही यहाँ पे है और फिर रिस्टोर दिस वर्जन कर दूं, तो जो मेरा 6 तारीख का स्टेटस था वो मेंटेन हो जाएगा. ये इसलिए बहुत यूजफुल है क्योंकि अगर कोई टीचर जो शुरू में टेक्नोलॉजी से उतना नहीं जानते, ना जानकारी की वजह से अगर कभी उनसे गलती हो गई तो हम उसको स्टेटस क्यू को मेंटेन कर पाते हैं. ये और अगर मान लीजिए मुझे देखना है कि किसी ने जानबूझ के कोई गलती करी है, कुछ छेड़ दिया है, तो इवन दैट इज पॉसिबल फॉर मी टू चेक. वो मैं आराम से उस पे जाऊं और जाके देख लूं किसने क्या किया है, तो आई कैन इवन मेक अ चेक दैट सी आपने ये चीज किया, ये नहीं करना है. So that type of things are also possible. So people become very much vigilant. उनको पता है कि अगर कोई भी चीज आप करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं इसमें, तो वो पकड़ में आ जाएगी. So that's why they become very vigilant and they never try to make any type of mischief. कोई ऐसा नहीं करने की कोशिश करता है और काम इजीली हो जाता है बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए. This is possible because of this sheet. If you want to create like जो मेरे स्कॉलर्स हैं वो डेटा भी अपना स्टोर करते हैं इधर ही गूगल शीट पे ही, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आपकी मशीन खराब हो गई, टूट गई, फूट गई, कुछ भी हो गया, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो तो आपके साथ, आपके ईमेल आईडी के साथ क्लाउड में सेव्ड है. आप किसी भी मशीन पे ओपन करिए और आपका डेटा आपके सामने आ जाएगा. उसकी एनालिसिस आपने करनी है, यहीं से सारी एनालिसिस के ऑप्शन इधर ही होते हैं. उसके ग्राफ बनाने हैं उसमें. इवन हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज. जैसे मुझे अगर ये जो नीचे की फाइल है इसमें जाना है, अब ऊपर दिख नहीं रहा है कि अगर मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये कौन सा कॉलम है, तो इसमें एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है कि आप ये वाले इस पे जा करके और यहाँ पे व्यू में जा करके और फ्रीज कर लेते हैं रोज को. रोज जो है मैंने अप टू 4 रो ये मैंने फ्रीज कर दिया. अब ये ऊपर की रो फ्रीज हो गई. अब नीचे अगर मान लीजिए हम जाते हैं, आराम से पता चल जाएगा कि ये जो है ये कौन से सब्जेक्ट की अटेंडेंस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इजीली पता चल गया. अगर मुझे ये मान लीजिए ये बहुत लंबा है, इस तरफ भी बहुत लंबा है और ऐसे चले जाते हैं तो बच्चे का नाम ही नहीं पता चल रहा है कि ये किसकी अटेंडेंस है. इन दैट केस इवन वी कैन गो फॉर फ्रीजिंग अ कॉलम. ऐसे करेंगे, व्यू में गए और इधर से फ्रीज कर दिया इस कॉलम को, ये कॉलम अप टू कॉलम बी. अच्छा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ऊपर ये मर्ज किया हुआ है, और अदरवाइज ये कॉलम भी आराम से फ्रीज हो जाता है. मैं किसी और में दिखा देती हूँ करके. अगर मुझे यहाँ तक ये ऑलरेडी फ्रीज किया हुआ है, यहाँ इस पे क्लिक करके और यहाँ पे व्यू पे जाके यहाँ पे फ्रीज में जा करके आपको अप टू कॉलम बी ऐसे कर देने से ये जो है फ्रीज हो जाता है. तो बच्चे का नाम यहाँ पे फ्रीज होकर के आपको दिख रहा है. ये चीज जो है नहीं हिलेगी, ये वहीं पे रहेगा. तो इधर एंट्री करना टीचर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है.
इसको ग्राफ के फॉर्म में चाहिए, इजीली हो जाता है. तो इट प्रोवाइड्स यू ample opportunities to work on, and then it can be opened on your phone itself. आपको अगर ये जो शीट है इसको अपने फोन में खोलना है, इस फोन में किसी भी तरह के गूगल एप्लीकेशन को खोलने के लिए सिर्फ एक काम आपको करना है, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है उस पे जा करके उस पर्टिकुलर जो ये एप्लीकेशन है उसका जो ऐप है वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है. क्योंकि जो सारे के सारे एप्लीकेशंस है, लैपटॉप पे तो ये डायरेक्ट खुलते हैं या सिस्टम पे तो ये डायरेक्ट खुलेंगे, लेकिन फोन में इसके लिए ऐप डालनी पड़ती है, और फ्री ऐप है, ये भी याद रखिए, कोई भी पेड ऐप नहीं है. फिर आपके फोन में भी, अब मेरे साथ तो ये होता है कि कभी कहीं मैं किधर से जा रही हूँ तो पीछे से बच्चा आया, मैम मैम मेरी मेरी ये वाली अटेंडेंस में ये प्रॉब्लम, और ये मेरे टीचर ने मुझे लिख के दे दिया है कि मैं आपसे करेक्शन करवा दूं. तो रादर देन कीपिंग दैट चाइल्ड एट बे कि चलो बाद में करूंगी, ये करूंगी, बाद में मैं भूल भी सकती हूँ, मैं फौरन अपना फोन खोलती हूँ, वो जो उन्होंने लिख के दिया है टीचर ने, वो करेक्शन आराम से उस बच्चे के पेज पे जाके, जो ये कोर्स है उस पे गई, बच्चे का नाम ढूंढा और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो करेक्शन हो गई. तो कोई भी जो करेक्शन है उसको आप रोक के रखने का कोई सवाल ही नहीं होता, फटाफट हो जाती है. काम हमेशा अपडेटेड रहता है. व्हाई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन फोन एज वेल. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ समबडी आस्क मी, ये भैया ये इसका क्या है, ये एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, इसका ये क्या सिचुएशन है, एक सेकेंड के अंदर मैं इसको उनके साथ शेयर कर सकती हूँ. हाँ, एक चीज और है, जैसे मैंने बताया पीरियोडिकली आई हैव टू आस्क द टीचर्स कि अपनी अटेंडेंस को अपडेट कर दीजिए. अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स कहते हैं उनको नहीं, उतनी टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आती, तो उस केस में कहते हैं मैडम हमें वो फाइल नहीं मिल रही जहाँ पे अपडेट करना है, कहाँ पे करना है. अब देखिए इसका एक ऑप्शन है, मुझे अगर एक साथ वो 50 टीचर्स को आज इन्फॉर्म करना है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर 28 तारीख तक की अपडेट मुझे 2 तारीख तक करके दे दें. 28 मान लीजिए मुझे अभी जैसे नेक्स्ट नोटिस निकालनी है कि 28 मार्च तक की अटेंडेंस अपडेट हो जानी चाहिए बाय 2 अप्रैल, so that by 6th of April I can display the attendance. In that case, in one go I can inform all the teachers. How? You have to just go to this part. ये फाइल है, इधर ये जो इधर यहाँ ऊपर की तरफ ये फाइल लिखा हुआ है, इस पे जाना होता है. इस पे जा करके देयर इज अ सेक्शन विच इज कॉल्ड एज, जैसे उस पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन आएगा, ईमेल. ईमेल पे क्लिक करते ही उसके साइड में 2 ऑप्शन खुलते हैं. पहला होता है ईमेल दिस फाइल. अगर किसी एक बंदे को आपको ये फाइल ईमेल करनी है तो उसके लिए ईमेल दिस फाइल पे चले जाना है. और अगर आपको सब लोग, जितने लोग इस फाइल के कोलैबोरेटर्स हैं, मतलब जितने लोगों के साथ ये फाइल शेयर्ड है, सबको एक बार में आप एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और ये फाइल भी उनके साथ दोबारा से शेयर हो जाए, उनके सामने आ जाए कि इसमें करना है, तो आप ये ईमेल कोलैबोरेटर्स पे क्लिक कर दीजिए. ईमेल कोलैबोरेटर्स पे क्लिक करते ही वो फौरन आपको इधर एक मैसेज लिखने के लिए बोलेगा. क्या मैसेज लिखना चाहते हैं? अब जैसे मुझे यही लिखना है कि 28 मार्च तक की अटेंडेंस, 2 अप्रैल तक सभी लोग, I wish to request that this should be updated so that I can display the attendance by 6th of April. ये मैसेज मैं यहाँ लिखूं और फिर मैं इधर सेंड कर दूं. सबके पास एक मेल जाएगा जिसमें ये मैसेज भी पहुंच जाएगा और ये फाइल उनके साथ दोबारा से शेयर हो जाएगी. एंड whosoever जो जिन्होंने मिस किया था या ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनके पास वो सामने ईमेल होगा. तो वो लोग क्या करते हैं, उसी ईमेल पर जो आइकन बन गया उस पर क्लिक करते हैं और जा करके अपना अपडेट कर देते हैं. एक तो रेडी रेकनर हो गया कि भाई उनको ये करना है काम, और दूसरे उनको ढूंढना भी आसान हो गया. एक और चीज जो फर्दर मैं आपको बताऊं, जैसे क्योंकि ये फाइल जो है उसमें काम कोई भी कर सकता है, और जैसे अभी जब मैंने 31 जनवरी तक की अटेंडेंस डिस्प्ले की, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो 31 जनवरी तक की अटेंडेंस है उसको मैं रिकॉर्ड में रख लूं. उसके बाद कोई चेंज जो होगा वो आगे का होगा, लेकिन उस वक्त तक का रिकॉर्ड मुझे रखना है. इन वन गो यू कैन डाउनलोड द एंटायर नंबर ऑफ शीट्स एक बार में. देखिए कैसे, यहाँ फिर फाइल में जाते हैं, इधर फाइल में जाके यहाँ पे डाउनलोड्स का बटन है, इस पे जाते हैं और ये बहुत सारे ऑप्शन देता है किस किस फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये पीडीएफ के फॉर्म में भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्म में भी कर सकते हैं. तो व्हाट आई डू, व्हेनेवर आई एम फ्रीजिंग, लाइक आई एम कैलकुलेटिंग दिस टिल दिस डेट, तो उसी दिन का मैं बैकअप ले लेती हूँ. क्या करती हूँ, इस फाइल को
मैं डाउनलोड कर लेती हूँ इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट के फॉर्म में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और अपने डाउनलोड्स में जाके उसका नाम चेंज कर लिया, दिस इज द अटेंडेंस टिल 5th ऑफ जनवरी और 5th ऑफ फरवरी, ऐसे करके उसका बैकअप ले लिया। और मैं एक स्टेप और आगे करती हूँ कि भाई डाउनलोड्स में से भी तो डिलीट हो सकता है, भर जाता है तो उसे डिलीट करते हैं हम लोग। मैं उस फाइल को अपने आप को मेल भी कर लेती हूँ, मेल में लिख के कि 5 फरवरी 2024 तक की ये अटेंडेंस की बैकअप है। और मेरी जो को फैकल्टी हैं, जो मेरे साथ इसकी कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी मैं शेयर कर देती हूँ कि बैकअप रहेगा हमारे पास। क्योंकि कभी कोई बच्चा आरटीआई लेके आ जाए, कोई तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन हो कि क्या था इसका, अभी तो ये दिख रहा है, पहले क्या था, किस तरह से था, तो वी हैव गॉट द रिकॉर्ड विद अस दैट सी दिस इज द एविडेंस दैट ये बच्चे का इस टाइम पे ये था। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रली गवर्नड है, पूरे इंडिया के बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। तो अगर उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है कि किसी बच्चे का भी लॉस ना हो और हम लोग भी थोड़े से फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, उसके लिए ये करना जरूरी होता है। एंड इन द सेम वे, जो अभी डॉक फाइल आप देख रहे थे, विन इन वन गो यू कैन सेंड एन ईमेल टू ऑल द कोलैबोरेटर्स। सब बच्चों के साथ जिनके साथ शेयर किया, एक बार में ईमेल चला जाता है। फाइल को डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं। वंस द थिंग्स आर डन, यू कैन डाउनलोड, इवन यू कैन रिमूव द राइट्स, एडिटिंग के राइट्स आप सबके। जैसे मान लीजिए आपने एक डेट दे दी थी बच्चों को प्रोजेक्ट करने की कि भाई आपको जो प्रोजेक्ट करना है वो 10 जनवरी तक कर देना है, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो। अब 10 जनवरी अगर आपने एक बेंचमार्क सेट किया है, तो आफ्टर लाइक 12 o'clock at 10th January, what you can do, you can just go to the file and change their rights। उनको आप व्यूअर बना दीजिए, एडिटर की बजाय व्यूअर बना दीजिए। अब वो कुछ उसमें कर ही नहीं पाएंगे, मिसचीफ करने की तो दूर की बात है। तो अगर टीचर को नॉलेज है तो वो बहुत इजीली अपनी चीजों को बड़े इजीली मैनेज कर सकता है और कोई उसके साथ मिसचीफ तो नहीं कर सकता है। ये चीज तो पक्की बात है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इतनी सारी चीजें जब मुझे मैनेज करनी होती है, और मेरे साथ सिर्फ वो बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं या डिसर्टेशन कर रहे हैं वो ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी कि मैम आपके साथ पेपर लिखना चाहते हैं, आपके साथ ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो जिसको भी मैं हाँ करती हूँ उसको मैं सिर्फ एक तो मैं देख लेती हूँ कि ये करेगा कि नहीं करेगा। शुरू किया, मेरी मेहनत बेकार हो जाए, भग जाएगा बीच में ही, तो मैं तो ऐसे केस में नहीं लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को देखा, चुन लिया कि हाँ ठीक है काम करना है, तो ये टूल्स पे ही काम करती हूँ मैं। इधर काम कीजिए सो दैट पीरियोडिकली आई कैन सी दैट व्हाट यू पीपल आर डूइंग एंड आई कैन सजेस्ट। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि एक पेपर तैयार हो जाए, मकसद ये है कि यू कैन लर्न हाउ टू राइट अ पेपर। My motto is to teach you that what exactly is the right way to do something so that independently in future you can do। मेरा तो बहुत सारा बन गया है, I can do on my own, but for the student it is very important कि उसको एक scaffold मिले कि exactly किया कैसे जाता है। For this purpose it's always important कि मैं उसको regularly feedback दे सकूं। So that's why I always ask them कि इधर ड्राइव पे काम करो, गूगल डॉक पे काम करो, शीट पे काम करो, इधर उधर काम करोगे, मेल करोगे, मैं नहीं देखूंगी। नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं डाउनलोड करूं, फिर उसमें ट्रैक चेंजेस में जाके चेंज करूं, फिर तुमको दोबारा मेल करूं, ये मेरे लिए ही नहीं पॉसिबल है। तब मैं ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी, एक दो ही चीज कर पाऊंगी। सो दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग एंड आई फील दैट it's good if we can do the work in that way. For teachers it is easy for us to manage our lives if we are assisted by these type of devices, these type of tools. So this is another tool। मैंने इसको अपने लिए एक और तरीके से यूज किया, आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू। मैं इसमें अपना भी सारा डेटा मेंटेन करती हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है या IQAC का डेटा भरना है या कभी प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, एट दैट मोमेंट व्हाट एवर एक्स्ट्रा वी हैव डन वी हैव टू पुट इन। लाइक जो हम क्लासेस लेते हैं, रेगुलर क्लासेस लेते हैं या रेगुलर जो काम करते हैं, वो तो टाइम टेबल में होता है हमारे। दैट इज नॉट वी नीड टू पुट इन समवेयर लाइक दिस। बट जो हम एक्स्ट्रा करते हैं, अब हम पूरे महीने का हमारा पता है कि इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। कई बार तो ऐसा होता है कि देखना पड़ता है खोल करके कि अच्छा कोई काम तो नहीं आज शेड्यूल किया हुआ था, तो वो सारा कुछ लिख लिया अगर मैंने इधर डॉक फाइल में, ये सॉरी गूगल शीट में, और इसमें आप बढ़ाते चलिए। अब जैसे ये है
ये आज का जो सेशन था उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, तो रेडी रेकनर हो जाता है कि ये काम जो है मैंने आज कमिट किया हुआ है. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी. एंड ऑल्सो जब इस तरह से हमारा पूरा रिकॉर्ड है, मान लीजिए मुझे कभी साजिद भाई से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे इसका सर्टिफिकेट दे दीजिए, सो आई हैव गॉट द डेट, आई हैव गॉट एग्जैक्टली दैट किसने मुझे कॉल किया था, तो मैं डायरेक्टली मैं अपना रिकॉर्ड देखती हूँ कि मैंने किस दिन क्या किया है, मुझे इसका सर्टिफिकेट चाहिए, किससे मांगना है. सो थिंग्स बिकम इवन ईजियर फॉर मी टू मैनेज कि मैं कैसे अपनी चीजों को मैनेज करूं. और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, ये यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं जिनमें यहाँ मैंने अपना डेटा जो है वो मेंटेन किया हुआ है. ये जो कॉलम्स हैं, इसकी जो ये हेडिंग्स हैं, ये वो कॉलम्स हैं जो एपीआई के कॉलम्स होते हैं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं. अब मैंने अभी बहुत सी चीजें अपडेट नहीं की है, जैसे ये जो है ये इस वाली कैटेगरी में बहुत सारा कुछ आएगा. तो जब एक बार कुछ करना है, फिल करना है फॉर्म, तो हम लोग इसको मेंटेन यहाँ पे कर लेते हैं कि शायद इधर ही लिख दिया होगा बट ये इधर लिखना था. ये कैटेगरीज हैं जिनमें एपीआई स्कोर हमें फिल करने होते हैं अपने फॉर्म्स में. तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है काम कर पाना, बिकॉज वो कैटेगरीज पता है कि इस कैटेगरी में अगर हम कुछ कर रहे हैं, इनमें से कोई काम जो इनमें से इधर लाई होता है तो वो इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं और उस पे हम मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. सो आई थिंक somebody's mic on और मैडम ऑन हो गया जी. सो ये था गूगल शीट्स. एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू शीट्स? Is there any question? No, ma'am. Okay. So let us move. हेलो मैडम. Yes. हेलो. जी जी जी. मैडम, गूगल शीट के बारे में कोई क्वेश्चन है नहीं. हाँ. मेरा एक गूगल डॉक के बारे में क्वेश्चन है. तो उसमें तो हम सभी टाइप कर सकते हैं, स्पीकर से हम सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन Just a second. हेलो. हेलो जी, वालेकुम सलाम. जी अंसार भाई. हाँ 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 मैडम. अंसार भाई जी जी बताइए. हाँ हाँ, गूगल डॉक में हम कोई पिक्चर या कोई डेटा शीट क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं? there was an important call from my department, that's why मुझे. जी सर, प्लीज आप एक बार अपना सवाल रिपीट कर दीजिए. गूगल डॉक मैं बोलना चाहता हूँ कि गूगल डॉक में है कोई फोटो या कोई डेटा शीट हम इंसर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. रुकिए रुकिए रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपको. ये सारा कुछ उसमें इंसर्ट हो जाता है. I'll just show you. देखिए, देख सकते हैं आप ये फाइल में अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है. हाँ मैडम. वो हाँ हाँ मैडम. इंसर्टेड है. कोई डेटा इसमें इंसर्ट करना है, कुछ भी सीधे कॉपी पेस्ट करिए. नहीं हो रहा है तो फिर आप सीधे इंसर्ट में चले जाइए. कभी कोई ऐसी चीज है जो इंसर्ट नहीं हो रही है तो यहाँ इमेज, टेबल, ड्राइंग, एनीथिंग. अभी जब और एक और चीज, चलिए मैं आपको अपने जो सवाल किया है इसमें तो नहीं, दूसरे में करके दिखाती हूँ. एक बहुत अच्छा सा जो ऑप्शन है इसका, कि अगर मान लीजिए आपको बॉक्स इंसर्ट करना है, बॉक्स इंसर्ट करना है, इसमें चले जाते हैं. इस वाले फाइल में, ये हमारा रफ फाइल था ना, इसमें मुझे मान लीजिए एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन मुझे डालनी है. इसमें आप टेबल पे जाइए. ऐसे करने के लिए टेबल पे जाइए और टेबल पे जाने के बाद यहाँ से एक सिंगल सेल को सेलेक्ट कर लीजिए. एक सिंगल सेल, रो और कॉलम दोनों का सिर्फ एक सिंगल सेल आपने सेलेक्ट कर लिया. अब देखिए यहाँ पे क्या बन के आया, ये इस तरह से बॉक्स जैसे बन के आया ना. अब ये जो बॉक्स बना, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ बॉक्स इवन ऑन अ वर्ड फाइल, गूगल डॉक में, कहीं पे भी
इससे अच्छा बॉक्स बनाने का तरीका हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस बॉक्स में लिखती चली जाऊं और इसमें मैं कोई डायग्राम भी ऐड करना चाहूं, वो सब इसके अंदर हो जाएगा। और इवन अगर ये दूसरे पेज पे मैं दिखाती हूँ, तो मैं दूसरे पेज पे इसको लेके चले जाती हूँ। ये जो बॉक्स है ये मान लीजिए 4 पेज का बॉक्स है टोटल, 4 पेज का भी बनता चला जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो बॉक्स है ये एक डायनेमिक बॉक्स है। ये इसमें कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ लिखना है, वो लिखने के बाद उसके ऊपर से बॉक्स बनाते हैं, उसमें बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जैसे ही आपने ऊपर एक लाइन ऐड किया, नीचे का जो पूरा है सब डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो वो डिस्टॉर्शन नहीं होगा इसमें अगर आप काम करेंगे तो, ऐसे बॉक्स बना के। और कोई भी चीज इंसर्ट करनी है, इजीली इंसर्ट हो जाएगी, सीधे कॉपी पेस्ट से भी इंसर्ट होगी, और नहीं तो आप यहाँ से ऐसे करके इस पे जा करके इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज ऐसे करके यहाँ पे किया, आप डायरेक्ट, आप अगर चाहें तो अपने कंप्यूटर से इंसर्ट कर सकते हैं इमेज, नहीं तो आप वहां पे जो भी वो है जो गूगल पे जा करके वहां से कॉपी करके इमेज को लेकर के आके इधर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू थैंक यू, चलिए, ओके, थैंक यू मैडम। ठीक है। सो द नेक्स्ट tool, the next tool which is this is slides. Again a wonderful tool. Why wonderful मैंने कहा? क्योंकि ये बहुत सस्टेनेबल टूल है। वंडरफुल से ज्यादा सस्टेनेबल है। क्यों सस्टेनेबल है? क्योंकि जब हम लोग पीपीटी बनाते हैं, मेरी खुद की बनाई हुई जो पीपीटी है, जो मैंने मान लीजिए जनवरी में बनाई हो, और मार्च तक आते आते मुझे लग रहा है कि डेटा चेंज हो गया है, या जो इंफॉर्मेशन है वो बदल गई है, अभी इंफॉर्मेशन और अपडेटेड हो गई है। अब वो जो पुरानी वाली पीपीटी थी, हम लोग क्या करते हैं, उसको नॉर्मली उसका कॉपी लेते हैं और उसको पेस्ट करते हैं और फिर उसमें अपडेट करते हैं, और फिर उसके बाद उधर नीचे लिखते हैं कुछ। और फिर ऐसा भी, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें हमने उसकी कॉपी की, पेस्ट किया और उसमें अपडेट किया, और जब प्रेजेंट करने गए तो पुराना वाला प्रेजेंट करने लग गया, किसी को मेल करने के टाइम भूल गए और पुराना वाला ही मेल कर दिया। ये अक्सर होता है, मेरे साथ तो होता था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे साथ तो ये होता था कि जिस पे काम किया गलती से उसके बजाय पुराना वाला भेज दिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये गूगल स्लाइड्स मैंने यूज करना शुरू किया, एंड इट इज लाइक मोर देन 3-4 years जब से मैंने पीपीटीज को इस पे ही बनाना शुरू किया है। हाँ, मैं ये जरूर करती हूँ कि अगर मुझे किसी के साथ शेयर करना है, एक तो है कि अगर मैं किसी को चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इस पे पीपीटी बनाए, वो 4-5 लोग मिलके पीपीटी बनाए, तब तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। और नहीं तो अगर मुझे सिर्फ उनको देना है तो मैं डाउनलोड करके दे देती हूँ। क्या फायदा है? ये जो गूगल स्लाइड्स है, ये बिल्कुल पीपीटी का सब्स्टिट्यूट है। यहाँ से प्लस पे क्लिक करने से नया पीपीटी खुलता है, नया पावर पॉइंट का सेक्शन खुलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे लिख सकते हैं, जो भी मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ से जाके एंटर मारते जाइए, आप जितनी चाहे उतनी स्लाइड्स बना सकते हैं। यहाँ पे जाके Ctrl+A करके आप जितना मर्जी इसमें चेंज कर लीजिए। आप जो डिजाइन है वो, इसमें बहुत से डिजाइन प्री फॉर्मेटेड है, जो इसमें से कोई सी भी चूज की जा सकती है। जो भी आपको अच्छी लगे वो डिजाइन आप यहाँ से चूज कर लीजिए, कलर चूज कर लीजिए। कोई ऐसा डिजाइन है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, आप वो थीम को इसमें लेना चाहते हैं, तो वो आप उसमें इंपोर्ट थीम का भी ऑप्शन होता है। कोई आपको बहुत अच्छा लग रहा है, नेट पे देखा या कहीं पे देखा, तो उस थीम को यहाँ पे से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और फायदा क्या है कि इसे आप यहाँ से शेयर कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके साथ 2 और लोग मिलके इस पे काम करें, टाइम नहीं है, सुबह में प्रेजेंटेशन करनी है, और जो ये पीपीटी है ये बहुत बड़ी है, किसी ऐसे विषय पे है जिसमें बहुत सारी पीपीटी लगेगी, तो वाई टू वर्क अलोन? यू कैन आस्क अदर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं कि वो आए और इस पे एक साथ काम करें, रादर देन कि आप एक बार बनाएं फिर उनको भेजें, वो उसको अपडेट करें, दूसरा व्यक्ति अपने फाइल पे अपडेट कर रहा है, अब वो दोनों आपको फिर से भेज रहे हैं, अब आप उसमें चेक कर रहे हैं कि किसने क्या किया है, इसमें से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा। इट्स अ हेडेक। ऐसा क्यों करना है? जब आप इस फाइल को उसी समय पे, जिस समय पे आपने इस पे काम शुरू किया है, इसी समय पे आप शेयर कर सकते हैं विद द अदर
people who are working along with you, and those people can actually work alongside. एक साथ एक ही वक्त में 3 लोग रिमोट एंड्स पे जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इंटरनेट से, मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, मेरे जो दूसरे साथी हैं वो किसी और कनॉट प्लेस में हैं, और एक और साथी हैं जो बेंगलोर में बैठे हुए हैं. These 3 people can connect with each other and they can create the slide at one go. And we have done this. ये ऐसे मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही हूँ, ये किया हुआ है. जब कोई इस तरह का काम होता है जो टाइम बाउंड है, कल ही के कल प्रेजेंटेशन है और ऐसे है, सो इन दैट एट दैट मोमेंट ऐसे ही काम होता है 3-4 लोग एक साथ मिलकर के. पहले ये होता था कि उसने अपना बनाया, उसने अपना बनाया, उसने अपना बनाया, सबने एक को भेजा, वो बेचारा जो एक कंपाइल कर रहा है वो तो उसकी तो नींद खराब हो ही गई. लेकिन जब ऐसे 4 लोग 5 लोग, तो 1 घंटे में पूरा काम सबने करके मिलके कर दिया, फाइल पूरी कंप्लीट हो गई, and it can be presented the next day. And whatever changes you want to, even इसमें भी अगर आपका ये सवाल है क्या इसमें भी इंसर्ट किया जा सकता है, yes, anything can be inserted, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, वो ऑडियो फाइल हो, इवन वीडियो फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज तो कर ही सकते हैं, टेबल चार्ट, एनीथिंग यू कैन इंसर्ट. डायरेक्ट कॉपी पेस्ट से भी हो जाता है, बट अगर ऑडियो वीडियो करना है तो वहां इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना होता है. जो भी चीज करनी है उस पॉइंट पर क्लिक कीजिए. वो आपसे कहेगा लिंक डालना चाहते हो, यूट्यूब पे जाकर के उसका, अब यूट्यूब के तो नॉर्मल जो लिंक्स हैं उन वहां पे एम्बेड कोड होता है. मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज मैं कह रही हूँ, रादर देन स्पीकिंग मैं दिखाने में ज्यादा बिलीव करती हूँ. यूट्यूब पे मैं गई, बट सपोज मुझे ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को मुझे वहां अपने उस पीपीटी में इंसर्ट करना है. राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी वीडियो यूआरएल कीजिए या कॉपी एम्बेड कोड कर लीजिए. एम्बेड कोड जो है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए. ये मैंने कॉपी कर लिया. अब मैं अपने उस वाली फाइल पे चले जाती हूँ, यहाँ वाली फाइल. इस फाइल में मैं इधर ये कोड को इंसर्ट कर सकती हूँ. इस कोड को, अब ये बड़ा सा कोड है, एम्बेड कोड है, क्योंकि एम्बेड कोड मतलब उसका जो पीछे जो बैकएंड में कोड होता है वो, ये पूरे को मैं इधर इंसर्ट कर सकती हूँ. मैं अभी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जैसे जब कभी कोई चीज आप इंसर्ट करते हैं इस तरह का जो बड़ा सा कोड है, ये कोड है क्योंकि, तो इसका शॉर्टेंड वर्जन भी बनाया जा सकता है. किसी भी लंबी चौड़ी कोडिंग को छोटा सा बनाया जा सकता है, शॉर्टन करके भी आप उसमें डाल सकते हैं. आप उसका क्यूआर कोड भी बना के उसमें डाल सकते हैं. ऐसे करके आप जब उस पर डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि जब भी आपको चाहिए तो वो यहीं से क्लिक करके वो फाइल वहीं पे चलने लग जाती है. तो पीपीटी जो होती है वो बहुत अच्छी सी बनती है, उसमें सब वीडियो के साथ वो बन गई. तो वो क्या होता है कि योर वर्क इज शोकेस्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे. ऐसे करके एक बहुत एनरिच्ड सा पीपीटी बनाया जा सकता है. इसमें भी वही ऑप्शन है, आप चाहें तो एक साथ सबके साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. पब्लिश टू द वेब, उसको अगर आपको किसी वेबसाइट पे जैसे स्लाइड शेयर वगैरह पे डालना है वो भी यहाँ से किया जा सकता है. इवन अगर आप चाहें तो जो मल्टीपल कोलैबोरेटर्स हैं उनको भी ये यहाँ पे ओपन नहीं हुआ ईमेल, क्योंकि मैंने किसी को शेयर नहीं किया. अगर मैंने इस एक व्यक्ति के साथ भी इसे शेयर कर दिया तो ये ईमेल कोलैबोरेटर्स भी ओपन होके आ जाएगा. मैं एक साथ सबको मैसेज भेज सकती हूँ कि अब इसमें ये काम हो गया, ये और करना है. और मैं चाहूँ तो इस फाइल को पावर पॉइंट के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ. जब मुझे किसी ऐसे को देना है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इस पीपीटी पे शेयर करे, मैं सिर्फ उसको उसका एक कॉपी देना चाहती हूँ. इन दैट केस आई विल डाउनलोड दिस पीपीटी एंड देन इट कैन बी गिवन टू द पर्सन थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप, और वेरियस फॉर्म्स हैं जिनके अंदर हम देख सकते हैं. इसमें भी हम ऐसे ये जो वर्जन हिस्ट्री है वो देख सकते हैं, किसने कितना काम किया है, कब किया है. थिंग्स कैन बी सीन. इफ आई वांट टू मेक अ स्लाइड शो डायरेक्टली थ्रू द गूगल स्लाइड्स, राइट नाउ इधर एक ऑप्शन है स्लाइड शो का, उस पे जाके मैं डायरेक्ट स्लाइड शो भी कर सकती हूँ. डायरेक्ट स्लाइड शो भी पॉसिबल है इसमें. इससे यूज करने से जो किसी भी तरह का ग्लिच, हाँ सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए प्रॉपर. याद रखिए जितने भी टूल्स हैं इन पे अगर आप डायरेक्ट कहीं पे भी जा करके प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, ये चीज का तो ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी हो.
अगर ऐसा कोई भी शुभा है कि पता नहीं वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, या एट दैट मोमेंट जब आप काम कर रहे हैं कहीं बीच में इंटरनेट चला गया तो बीच में कहीं दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो आईआईटीज के साथ बहुत सारा काम करती हूँ, आईआईटी दिल्ली में रिकॉर्डिंग्स के लिए जब मैं जाती थी, तो ये मेरी सारी पीपीटी जो है, जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग की है उसकी पीपीटी मेरे पास मौजूद है इधर गूगल स्लाइड्स पे। लेकिन स्टूडियो में, क्योंकि अब जैसे आज रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, तो मैं एक दिन पहले अपनी पीपीटी को फाइनल करके उसका एक डाउनलोड करके, उसको उस पीपीटी को डाउनलोड करके, जो वहां पे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी लोग हैं, जो आईआईटी के अंदर जो उनका स्टूडियो है उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मैं मेल कर देती थी जस्ट फॉर द सेक, प्रिकॉशन के लिए। आईआईटी में कभी नेट नहीं गया, मैं जितने दिन भी गई, करीब 30-35 दिन तक कभी रिकॉर्डिंग करी उधर, एक भी दिन नेट नहीं गया, लेकिन फिर भी कुछ भरोसा नहीं होता, और आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, आप अपने कॉलेज से छुट्टी लेके जा रहे हैं, उनका भी टाइम बहुत प्रेशियस है। अगर आपकी पीपीटी नेट पे नहीं उस दिन खुली, नेट नहीं है, कुछ दिक्कत ऐसी हो गई, तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में इधर तो है ही, इसको डाउनलोड करके उनको मेल भी कर दिया, ताकि वो जो स्टूडियो स्टाफ है वो क्या करते थे, हमारे जाने से पहले ही वो पूरा उसको फिर अपने अपने सिस्टम में जो जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है उधर उन्होंने मेल पर से डाउनलोड किया, उधर लगा वगा के एकदम फिट करके तैयार खड़े रहते थे कि मैडम आप आइए और आकर के रिकॉर्डिंग करिए, बस मुझे जाके उन्हें कुछ बताना नहीं है। क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता था कि 2 घंटे के लिए ही गए, एक रिकॉर्डिंग करनी है, 2 घंटे के लिए गए, फिर आके अपनी क्लास देनी है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी देयर फॉर द होल डे फॉर वेटिंग फॉर देम टू गेट रेडी। सो दैट्स व्हाई इफ दे नो दैट द टीचर इज गोइंग टू कम एट 10 o'clock, 9:45 से वो रेडी होते थे। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो मतलब कई बार तो मुझे ताज्जुब होता था कि मैं 5 मिनट लेट हो जा रही हूँ लेकिन वो नहीं लेट होते। तो ये ऐसे इसी तरह से हो पाता है कि आपने इधर बनाया, जो भी करेक्शंस हैं वो आप लास्ट मोमेंट तक कर सकते हैं, बट इफ यू हैव गॉट एनी सिंगल कंफ्यूजन दैट मे बी देयर माइट बी अ कनेक्टिविटी इशू, यू जस्ट हैव मेक अ डाउनलोड, जैसे मैंने अभी बताया, और उसको उनको पहले ही मेल कर दीजिए ताकि दोज पीपल कैन गेट रेडी। बट इफ यू हैव गॉट इट इन योर फोन and there is no any issue of connectivity, you can open it with at that point of time through the Google slides and discuss the things. ये एक प्रोजेक्ट है, छठा नहीं पांचवा, छठे पे मैं भी काम कर रही हूँ। पांचवा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है विद आईआईटी दिल्ली एंड मद्रास, जो बीएड का एक पेपर है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, बीएड एमए इन सब में पढ़ाया जाता है वो पेपर, उसके ऊपर था। तो ये उसकी स्लाइड्स हैं, ये था स्लाइड्स। Is there any question related to slides? Okay, so next tool पे आ जाती हूँ मैं। जो next tool है that is Jamboard. Jamboard is again a fascinating tool of Google. जब आप कभी ऑनलाइन क्लास लेते हैं उस टाइम पे एज ए टीचर यू ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। मैं तो देखती हूँ, आई एम अ टीचर ऑफ साइंस, मैं बहुत सी चीजें और भी पढ़ाती हूँ लेकिन साइंस तो मेरा बेसिक सब्जेक्ट है। तो जब पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़ानी है आपको, कई बार उसमें केमिकल रिएक्शंस हैं या फिर कुछ भी ऐसा है जो आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो क्लासरूम में जाके कैसे पढ़ाएंगे। मतलब हमें तो एज अ टीचर एजुकेटर आई हैव टू टीच देम दैट हाउ दे आर गोइंग टू टीच इन देयर क्लासेस। सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई एम टीचिंग देम कि कैसे पढ़ाना है, अगर मैं उनको सही तरीके से नहीं पढ़ाऊं, जस्ट इमेजिन क्या हाल होगा, फियास्को हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई इवन इन केस ऑफ ऑनलाइन सिचुएशन हमें हिलना नहीं है, डिगना नहीं है, पढ़ाएंगे हम, और साइंस पढ़ाएंगे और प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे उस टाइम पे। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस का सिचुएशन है हम देख चुके हैं, ये इसके बिना तो चारा ही नहीं है। अब कुछ कोरोना ने हमें सिखा दिया कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कभी भी हम ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो हम वेल इक्विप्ड हों, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। जरूरत ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं भी लेना हो, मैं तो अक्सर लेती हूँ ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं उसमें मैं किसी दिन बोलती हूँ कि ये वाला टॉपिक मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे उनको ये बताना है कि ऐसी सिचुएशन कभी भी आएगी तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 हमें तो आता ही नहीं है। शुरू शुरू में टीचर्स ने ये किया था, हम लोगों ने तो ट्रेनिंग दी पूरी। जामिया में 8 स्कूल्स हैं और हर लेवल के स्कूल हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के, हमारे यहाँ एक मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल भी जिसमें
जो नर्सरी एजुकेशन के बच्चे हैं वो हमारे, वो उसमें जाते हैं। उसमें केजी 2 क्लासेस है सिर्फ, नर्सरी और केजी, वहां से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, तो 8 स्कूल्स हैं। ये जो स्कूल्स हैं इनमें करीब 300-350 के अराउंड टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। ये टीचर्स की शुरू में ही ट्रेनिंग करानी पड़ी थी जब कोरोना आया और ये हुआ कि अब सबको ऑनलाइन क्लास लेनी है। तो उस टाइम पे जब ट्रेनिंग कराई थी तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल था जो मैंने उनको बताया था। और मैं इसे खुद बहुत यूज करती हूँ, आप देख सकते हो बहुत सारी क्लासेस हैं, और ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जहाँ के मैं सेशंस लेती हूँ उसमें मैंने ये जरूर बताया, क्योंकि इट्स समथिंग विच यू शुड नो। यहाँ से प्लस का सिंबल है, इस पे जाने पे जैम बोर्ड का वो जे का साइन था, उस पे क्लिक करना है, फिर ये प्लस का सिंबल है, इस पे जाने से एक नया जैम खुल के आ जाता है आपके सामने। ये जो नया जैम बोर्ड है, इट्स जस्ट अ रेप्लिका ऑफ अ व्हाइट बोर्ड विच यू हैव इन योर क्लासरूम, एंड वॉट एवर यू कैन डू ऑन योर व्हाइट बोर्ड यू कैन डू हियर ऑल्सो। कैसे? इसका नाम आप कुछ देना चाहते हैं, आप नाम दे दीजिए। नाम दे देते हैं, ये नाम दे दिया मैंने। अब जैसे मैं अगर मान लीजिए मैथ्स पढ़ा रही हूँ और मुझे उसमें सिंबल्स पढ़ाने हैं और सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसके लिए मुझे सिंबल्स, यहाँ पे पेन होता है, पेन का ऑप्शन है, तरह तरह के पेन्स इन्होंने दे रखे हैं और even in different colors. So if I select this, the normal pen with black color, then whatever I wish to write, it is going to be written. I'm just using the pen, the fingers. कोई डिवाइस नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक ली भी थी डिवाइस जब शुरू शुरू किया था और सबको ट्रेनिंग देनी थी, तो मैं भी उस टाइम पे बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। तो एक डिवाइस आती है मार्केट में है जो पैड की तरह से काम करती है, उसमें एक पेन लगा होता है जिससे आप उस पे लिखेंगे, लिखता नहीं है बट वो जो चीज आप लिख रहे हैं उधर उस पे मार्क कर रहे हैं वो इधर आपके स्क्रीन पे आती जाती है। वो मैंने शुरू किया यूज करके करना। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ टीचर्स को कि वो ये डिवाइस खरीदें, क्या जरूरत क्या है, देयर इज नो एनी नीड। जब नीड ही नहीं है तो फिर क्यों वो रखी हुई है वो डिवाइस। मैं फिर खुद भी नहीं यूज किया मैंने। तो 3,000 की डिवाइस थी। अब मैं क्यों किसी को भी बोलूं कि आप वो 3,000 की डिवाइस खरीदो जब मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। अपनी फिंगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोई भी सिंबल बनाने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, कोई डायग्राम बनाना है, जस्ट बाय द यूज ऑफ योर फिंगर्स। एंड यू नो इवन इन ऑन द बोर्ड आप बहुत प्रिसाइजली तो बनाते नहीं हो। जब आप बोर्ड पे कुछ लिखते हैं या आप कोई डायग्राम बनाते हैं तो इतना तो आर्टिकुलेट टीचर्स हैं, अब आर्टिस्ट तो है नहीं, तो आपका कोन जो है वो थोड़ा टेढ़ा भी है तो भी बच्चा तो समझ लेगा ना कि ये कोन बनाया है मैम ने और ये मैम जो है इसके सेगमेंटेशंस कर रही हैं। दैट इज इजीली डन बाय यू। एंड देन इफ यू वांट टू राइट दैट ये है, आराम से आप सब कुछ अपने एक्सप्रेशंस को उधर शो कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। ये एक यूजुअल जो मेरी क्लास होती है उसका जैम है, जो उस टाइम पे पढ़ाया था। और ये क्लास नोट्स जो हैं जो उस टाइम पे बनाए होंगे वो तब से पड़े हुए हैं अभी तक। और कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में जब कभी कोई क्लास ऑनलाइन ली और बच्चे देख लेते हैं कि अच्छा मैम के पास तो ये क्लास नोट्स है, तो वो मांगते हैं कि मैम वो जो था जो आपने पढ़ाया होगा उस ग्रुप को तो वो दे दीजिए हमें। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे देती हूँ, दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे देते हैं। तो ये जो सब कुछ है ये क्लासरूम में बैठ करके ये पढ़ाया गया है, मतलब यहाँ अपने घर से ही बच्चों को पढ़ाया है। सारी चीजें इस पे इजीली हो जाती हैं और कोई डायग्राम बनाना है, कुछ बनाना है, वो भी बहुत इजीली हो जाता है। अभी एक तो हम लोग बना ही रहे थे, चलिए इस पे वापस जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा डायग्राम है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है और शायद प्रिसीजन से बने ना, तो इसमें एक ऑप्शन है, ये यहाँ पे जाएंगे, ये ऐसे एक ऐड इमेज का सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये साइड में जो रो है इसमें यहाँ पे जाएंगे ऐड इमेज। अब मुझे वो डायग्राम बच्चों को जो सिखाना है वो गूगल पे तो अवेलेबल है, तो गूगल इमेजेस पे डायरेक्ट जा करके आप जो भी डायग्राम है उसको यहाँ पे से ले सकते हैं। ओके, तो मैंने ये जो है ले लिया इधर से, ये डायग्राम यहाँ से लेके इधर ये इंसर्ट कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड था बनाने में, मुझे टाइम लगता, ये यहाँ से मैंने लिया है और इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ साइज को और मैं आराम से पढ़ा सकती हूँ। अब देखिए कितना सेकंड लगा, विद इन 10 सेकेंड्स
इजीली आपने उस डायग्राम को जो क्लास में बनाते, बोर्ड पे भी बनाते, तो भी शायद इतना सही नहीं बनता और इतना जल्दी नहीं बनता, आराम से इधर आ गया। अब मान लीजिए ये तो सिचुएशन थी कि जब आपके पास डायग्राम आपकी मशीन में नहीं था, गूगल से डायरेक्ट लिया। एक सिचुएशन ये है कि आप उसको, आपके पास मशीन में है वो, तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए। अब मशीन में है मतलब आपने पहले से बना के रखा है, खुद से बना के कहीं पे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर, अपने सिस्टम में डाल के रखा हुआ है। इधर से ब्राउज करेंगे। अब जैसे मैंने अपने जो ये पिक्चर्स फोल्डर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने रखी हुई हैं, जो एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम में पढ़ाने के लिए यूज करती हूँ, वो रखा हुआ है इधर। ये देखिए, एक ये लेते हैं, दिस वन। ये ऑलरेडी मशीन में था, उधर से लिया, खुद से बनाया ये। कोई वीडियो बनाने के टाइम पे रिक्वायरमेंट थी और कॉपीराइट फ्री मिल नहीं रहा था, तो ये खुद से स्क्रिबल कर लिया, खुद से पेन से बनाया। अच्छा बन गया, पहली बार में मैं ऐसे ट्राई करी थी, अच्छा बन गया। तो मैंने क्या किया, उसका फोटो ले लिया। ये जो डायग्राम, ये जो स्पाइरल है ना, ये स्पाइरल खुद से बना दिया, इसका फोटो ले लिया मोबाइल से, और उसको इधर मशीन पे ले आकर के, ये जो एरोज दिख रहे हैं आपको, ये एरोज मैंने, ये जो वर्ड फाइल होती है उसमें पेंट ब्रश होता है ना, उसमें सिंबल्स होते हैं इंसर्ट करने के, वहां से ये एरोज ले लिए। टेक्स्ट बॉक्स लेकर के जो इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने टाइप कर दिया, क्योंकि अगर वो हाथ से लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग जो होती है, जरूरी नहीं कि वो सबको समझ में आए। हो सकता है मैं आर अलग तरीके से बनाती हूँ, वो दूसरों को एस लगे, या वाइस वर्सा। So that's why rather than going to handwrite, like give the handwritten script in the diagram, go for a machine writing. machine writing सबको समझ में आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जा करके इसको टाइप कर दिया, टाइप करके, और फिर ये डायग्राम को मैंने सेव करके रख लिया। अपना जो वीडियो था वो चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मैंने बताया, मैंने 5 प्रोजेक्ट्स अभी तक किए हैं, जो 4 शुरू के जो थे वो तो घर पे बैठ के किए थे, घर में रिकॉर्डिंग की थी, और जो 5वां प्रोजेक्ट है वो IIT दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ है, बाकी सब कुछ घर में किया। तो तकरीबन 180 के अराउंड वीडियोस हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं अभी। उसमें से कोई 137 वीडियोस जो है वो घर में होम रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि वो कोरोना का टाइम था, उसके बाद के वो प्रोजेक्ट्स थे। IIT मद्रास ने बोला था घर में रिकॉर्ड करके देना है और HD क्वालिटी रिकॉर्डिंग करके देनी है जो टेलीकास्ट होगा। और क्यों HD चाहिए, क्योंकि कई बार वो इतना बड़ा स्क्रीन होता है, पूरी दीवार भर का स्क्रीन होता है। अब उस स्क्रीन पे अगर वीडियो जाएगा और अगर उसकी क्वालिटी हाई डेफिनेशन नहीं होगी तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, साधारण भाषा में वो फट जाएगा, फट जाएगा, वो दिखेगा नहीं क्लियरली। तो अगर वो HD क्वालिटी में होगा, HD क्वालिटी में क्या होता है, पिक्सल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो चाहे कितने भी बड़े स्क्रीन पे आप डिस्प्ले करें, वो कभी भी फटता नहीं है, उसका जो विजुअल है वो डिस्टॉर्शन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई दिस सेड कि आप ना HD में करोगे। होम बेस्ड रिकॉर्डिंग, HBR नाम था उन प्रोजेक्ट्स का। IIT मद्रास और स्वयं प्रभा का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग हो रही थी उसकी, करा था वो IIT मद्रास के लिए। तो उन्होंने ये बोल रखा था, तो उसमें जब मैं बना रही थी वीडियो ना, तब मुझे रिक्वायरमेंट हुई थी इस तरह की डायग्राम्स की। कॉपीराइट फ्री नहीं मिल रहा है, बट बिना डायग्राम के पढ़ा नहीं सकते। अब ये ग्रोथ ऑफ, ये जो वो होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि जो पाथ होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बच्चे के, ह्यूमन बेबी के, वो स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर। अपने मूवमेंट्स को, अपने जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ग्रोथ के, वो उसको रिपीट करता है, एंड देन दायरा पड़ता चला जाता है। वो एक स्पाइरल की तरह से होता है, टॉर्नेडो जैसे, जैसे नीचे पतला स्पाइरल, देखिए नीचे पतला है, ऊपर बड़ा है। तो ये चीज को दिखाना था, डायग्राम ड्रॉ करके इसे खुद ही बना लिया। एंड वेन एवर आई टीच देम थ्रू जैमबोर्ड, बच्चों को पढ़ा रही हूँ अगर मान लीजिए ये टॉपिक, तो मैं वहां से अपनी मशीन से इसको इधर लेके आती हूँ और उनको पढ़ा देती हूँ। जब इसको पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे मुझे कोई चीज छुपानी है, उनको बताना है कि ये, उनसे पूछना है कि ये क्या है, ये भी ऐसे भी असेसमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है। और इस तरह से बहुत से असेसमेंट क्रिएट किए हैं हम लोगों ने। ये जो असेसमेंट है, इसके क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से ये जो सर्कल यहाँ है, इसको लिया और इसको छुपा दीजिए, इसको छुपा दिया, और आप उनसे ABC, इसको ABC ऐसे करके नाम दे दीजिए। टेक्स्ट बॉक्स लेके, ये यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया, इधर लिख दिया A, इधर लिख दिया, ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ से इसको लिख दिया B, और इधर ये इसको छुपा दिया इससे,
सर्कल से यूं ऐसे छिपा दिया और इधर से ये टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया C, and now you can create a question out of it. Identify A, B and C. MCQ बना सकते हैं. What exactly will be the explanation of A? What is A? Identify A. उसके 4 ऑप्शन दे दिए. Identify B ऑप्शन दे दिए. C. Multiple type के questions when we are creating items, high level जो items होते हैं, जैसे HOTS होते हैं, जो higher order thinking skill based questions होते हैं, जो हम लोग जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना NAS वेस का, या फिर कोई भी जो लार्ज स्केल असेसमेंट्स हैं, तो उसमें अभी बोला जाता है कि आपको कुछ लोअर ऑर्डर थिंकिंग के देने हैं, कुछ मिड ऑर्डर के और कुछ हायर ऑर्डर. जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आमतौर से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आते हैं. तो आप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेडी करते हैं हम लोग, वो भी इसकी मदद से बना सकते हैं. एंड इवन एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ क्लास यू कैन गो फॉर गिविंग क्वेश्चंस, असेसमेंट उनका ऐसे भी किया जा सकता है. ये बनाने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सेव करके रख लीजिए. एंड यू कैन इवन गो एंड क्रिएट अ गूगल फॉर्म. जब आप फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं. वी डू दिस. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में बनाते हैं. तो इस पे जैमबोर्ड का इस्तेमाल करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ इनोवेशन. So this was Jamboard, and when we are teaching, we can even point. देखिए ये यहाँ पे है. मुझे इसको एक्सप्लेन करते टाइम इसको हाईलाइट करना है कि देखो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं ज्विटर आयन के बारे में बात कर रही हूँ. तो मैं उनको ये जो लेजर लाइट है इसके जरिए मैं उनको इंडिकेट कर सकती हूँ. एंड दिस लेजर लाइट इज गोइंग टू गो अवे. जब मैं उनको पढ़ा रही हूँ, इवन जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी ऐसे लेजर लाइट को यूज करते हैं. तो ये जो जैमबोर्ड है ये आपको इतनी, और ये किसी भी के साथ चलता है, किसी भी का मतलब जैसे जूम पे आप पढ़ा रहे हो, उस एट द सेम टाइम यू कैन ओपन योर जैमबोर्ड. जूम पे भी ये ओपन हो जाता है, किसी पे भी, सिस्को, वेबएक्स. मैंने तकरीबन जो जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हैं उनके जरिए इसको यूज करके पढ़ाया है, और ये सब पे काम करता है. इसके जरिए आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. इसके साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग टूल को ऐड करके, जिसको देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो बता दूंगी, नहीं तो फिर बाद में कभी देखेंगे. एक लूम करके एक टूल है जिसे हम साथ में इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक्सटेंशन की तरह से अपने गूगल अकाउंट में ऐड कर लीजिए. मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नाम लिख देती हूँ. उसका नाम है लूम, LOOM, लूम. लूम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल है, फ्री टूल है. इसको एज एक्सटेंशन आप अपने गूगल अकाउंट के साथ, जीमेल अकाउंट के साथ ऐड कर लेते हैं अगर, तो फिर आप सीधे जैमबोर्ड पे पढ़ाते पढ़ाते उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, साथ में आपका स्क्रीन भी आता रहेगा, आपकी फोटो भी आती रहेगी, और स्क्रीन पे आप जितना कुछ पढ़ा रहे हैं वो भी आता रहेगा. सो उससे क्या होगा कि आपका वीडियो भी रिकॉर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू वांट टू शो देम the video at later stages, that is also possible for you. So this is somehow the way in which you can make your class very very interesting. बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि ये ऑनलाइन क्लास हो रही है कि ऑफलाइन. जैसे वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते वैसे ही वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ तो वैसे ही हो रहा है. बल्कि कभी कभी तो मैं बताऊं आपको, आसान हो जाता है. कैसे आसान हो जाता है कि अब यही डायग्राम अगर मुझे क्लास में बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि मिस्टेक्स कर देते हैं. टीचर भी तो इंसान ही है, तो उससे मिस्टेक हो जाएगी, या कोई स्ट्रक्चर जिसका जो सही में जैसा लगता है वैसा नहीं आप बना पाए. लेकिन जब आप इस तरह पढ़ा रहे हो तो मिस्टेक होने के चांस ही नहीं है, तो बल्कि आसान ही हो जाती है टीचिंग. So is there any question related to JAM? I think this much is enough for JAM. इसको यूज कर, अच्छा एक चीज और इसके बारे में बता दूं मैं. जब मैंने बताया था इसको शेयर भी किया जा सकता है एक साथ बहुत सारे लोगों से, लेकिन मैं नहीं करती हूँ शेयर एक साथ बहुत सारे लोगों से. बच्चे जब इसको मांगते हैं कि मैम जो क्लास में पढ़ाया आपने वो नोट्स, वो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उनको चाहिए वो पूरा, तो आप यहीं से ये देखिए, ये जो जैसे ये फाइल मुझे शेयर करनी है बच्चों से, तो ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे जाएंगे, यहाँ पे जाके डाउनलोड एज PDF का ऑप्शन होता है. डाउनलोड एज PDF के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो 20 पेज की फाइल है वो आपके डाउनलोड्स में चले जाएगी. अब उसको लेकर के मैं क्या करती हूँ, जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, क्लास में जो एक बच्चा जो मॉनिटर है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उसको मेल कर दीजिए, या उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, या उसको कहीं पे भी, या अगर बच्चों का क्लासरूम बना हुआ है तो उस पर डाल दीजिए.
सारे बच्चों के पास वो फाइल चली जाती है। सो दिस वन इज हाउ टू शेयर द फाइल, द जैमबोर्ड फाइल। अगर कोई सवाल है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर एक छोटा जो ब्रेक लेना है, आई थिंक देयर इज अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग वापस आकर। सो इज देयर ए क्वेश्चन? हेलो मैम, ये जैमबोर्ड जो है वो गूगल डॉक्स में है हाँ। या वो 9 डॉट्स वाला, वो जो 9 उसमें मेरा उसमें स्क्रीन आएगा? दिख रहा है, मैम, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ 9 डॉट्स ये दिख है, रहा है मैम। 9 डॉट्स ये है ना? हाँ। इन्हीं 9 डॉट्स में हाँ, आप ये नीचे जाएंगे, ये रहा जैमबोर्ड। अच्छा, ओके ओके मैम, थैंक यू। Okay. Anything else? Okay, so we will take a break, and I think the time which is given to us is 4 से फिर जुड़ना है। मैं देख लेती हूँ कितने बजे का टाइम दिया है। Ma'am, 10 minutes or 15 minutes break is there? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ। ओहो, अच्छा 3:30 से 5, तो फिर तो इसका मतलब है कंटिन्यू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इट इज 3:35। सो व्हाट वी कैन डू, यस वी कैन गो फॉर अ 10 मिनट्स ब्रेक। पानी वानी पी लीजिए और फिर हम लोग वापस आते हैं। तो इट इज 3:35, वी विल बी बैक हियर एट 3:45।